زمار جب گھر آیا تو انیزہ اور شہناز بیگم کو چھوڑ کر سب زمار کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مرتضی بیگ کو بھی یہ خبر مل گئی تھی، اس کے لیے بھی یہ ایک شوق تھا۔ رات کے کھانے پر زمار خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ انیزہ کو زمار کی یہ خاموشی چبھ رہی تھی۔ زمار بیٹا، کیا ہوا ہے؟ تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ شہناز بیگم نے زمار سے پوچھا تو زمار نے انیزہ کی طرف دیکھا۔ آپ کی بیٹی نے مجھے خاموش رہنے کا کہا ہے۔ زمار بات کر کے دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا تھا، لیکن انیزہ کہنے والا حلق میں ہی پھنس گیا تھا۔ مرتضی بیگ زمار کی بات سن کر انہوں نے زمار کی طرف دیکھتے ہوئے شکر کا سانس لیا تھا۔ شہریار اور مرتضی بیگ کو یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ زمان ملک بساط کی وجہ سے مہرش کے لیے پریشان ہے، لیکن بات کچھ اور نکلی تھی۔ تم نے ہی کچھ کہا ہوگا میری بیٹی کو، نہیں تو وہ کبھی ایسا نہیں کہتی۔ شہناز بیگم نے جیسے ہی انیزہ کی سائڈ لی، زمار نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ماں جی، مجھے تو لگتا ہے آپ نے مجھے گود لیا تھا۔ یہ آپ کی سگی بیٹی ہے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں کچھ دن ملیشیا چلا جاؤں، آپ اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزاریں۔ زمار کا یوں اچانک ملیشیا جانے والی بات سن کر سب نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ کوئی ضروری کام ہے کیا وہاں؟ مرتضی بیگ نے حیرت سے کہا۔ جی ڈیڈ، بزنس میٹنگ ہے، میں کافی دنوں سے ٹال رہا تھا، لیکن اب جانا ضروری ہے۔ میرے ساتھ عابد جہانگیر بھی جائے گا، زمار نے کہتے ہوئے رومال سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ترچھے نگاہ سے انیزہ کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ زمار سے وجہ سن کر مرتضی بیگ کو کچھ حوصلہ ہوا تھا، لیکن انیزہ کو بے چینی لگ گئی تھی۔ وہ اپنی ناراضگی کو ایک لمحے کے لیے بھول گئی تھی۔ وہ زمار کو ایسے کیسے جانے دے سکتی تھی، اور اس نے ایک بار بھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ کھانے سے سب فری ہو گئے تھے۔ زمار اور انیزہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور مرتضی بیگ شہریار اور شہناز بیگم کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں چائے پی رہا تھا۔ انیزہ واش روم میں تھی جب اس کے موبائل پر جبران شاہ کی کال آئی۔ زمار جو کمرے میں رکھے اسٹڈی ٹیبل پر فائلیں چیک کر رہا تھا، اس نے گردن موڑ کر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑے انیزہ کے موبائل فون کو دیکھا، جس پر مسلسل کال آ رہی تھی۔ زمار نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے زمار موبائل کے پاس آیا اور موبائل پر آتی کال دیکھ کر وہ دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ موبائل کو سائلنٹ پر کرتے ہوئے زمار نے ایک نظر واش روم کی طرف دیکھا اور کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ ڈیڈ، آپ فری ہیں تو آپ سے بات کرنی ہے، زمار نے ٹی وی لاؤنج میں آ کر کہا تو مرتضی بیگ وہاں سے اٹھ کر زمار کے ساتھ باہر گارڈن کی طرف آ گئے تھے۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ مرتضی بیگ نے زمار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ، انیزہ کے بابا جان کا جو کیس چل رہا ہے، جس کو جبران دیکھ رہا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی اٹارنی یا تو شہریار لے لے یا جبران کو دے دیں۔ میں نہیں چاہتا کہ انیزہ یوں عدالتوں کے چکر لگائے۔ زمار کی بات مکمل ہوتے ہی مرتضی بیگ نے زمار کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن تم انیزہ سے بات کر لو، اسی نے اٹارنی دینی ہے اور پیپرز پر سائن کرنے ہیں۔ مرتضی بیگ کا جواب سن کر زمار نے اپنے ڈیڈ کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ، آپ سے بات میں اس لیے تو کر رہا ہوں کہ آپ انیزہ سے بات کر لیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اگر انیزہ کو یہ کہا تو وہ نہیں مانے گی، اور اگر میں نے زبردستی کی تو وہ اپنی ضد پر اڑ جائے گی۔ اس لیے آپ بات کر لیں۔ وہ اپنے بابا جان کے لیے لڑ رہی ہے، میں ہر طرح سے اس کے ساتھ ہوں، لیکن یوں عدالتوں میں جانا اس کا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ زمار کی بات سن کر مرتضی بیگ نے زمار کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، شادی کے بعد یہ سب ہوتا ہے، بیوی کی ہی ماننی پڑتی ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں انیزہ کو کہہ دوں گا۔ مرتضی بیگ یہ کہتے ہوئے اندر چلے گئے تھے۔ زمار ابھی گارڈن میں ہی تھا کہ انیزہ ہاتھ میں 2 کپ پکڑے گارڈن کی طرف آ رہی تھی، جس میں ایک میں زمار کے لیے کافی تھی اور دوسری میں چائے تھی۔ زمار گارڈن میں رکھی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کی کافی۔ انیزہ نے زمار کے سامنے کافی کا کپ کیا تو زمار نے چونک کر انیزہ کی طرف دیکھا۔ تم تو مجھ سے ناراض تھی، تو یہ کافی کی مہربانی کیسے؟ کہیں زہر تو نہیں ملایا اس میں؟ زمار نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو انیزہ نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے زمار کی طرف دیکھا۔ نہیں پینی تو میں واپس لے جاتی ہوں۔ انیزہ نے ہاتھ آگے کر کے کپ پکڑنا چاہا تو زمار نے فوراً کپ پیچھے کر لیا۔ نہیں نہیں، مجھے اپنی بیوی پر یقین ہے، لیکن پھر بھی تم ایسا کوئی ارادہ رکھتی ہو تو میں حاضر ہوں، زمار نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا تو انیزہ زمار کی اس بات پر خاموش رہی۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ زمار نے انیزہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ انیزہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زمار کو کیسے بتائے کہ اس کا ملائیشیا جانے کا سن کر وہ اداس ہو گئی ہے، تو جب وہ چلا جائے گا تو اس کے بغیر دن کیسے گزارے گی؟ کوئی بات تو ضرور ہے، بتاؤ مجھے۔ زمار بھی اب پریشان ہو گیا تھا جب اس نے انیزہ کے ہاتھوں کو دیکھا جو مسلسل مسل رہی تھی۔
जुमार ने बात करते हुए उनेजा के हाथों पर अपने हाथ रखे। वो आप उनेजा बात करते चुप कर गई थी। हाँ बोलो, क्या मैं? जुमार को समझ आ गई थी कि उनेजा को कौन सी बात परेशान कर रही है, लेकिन वो उनेजा के मुंह से सुनना चाहता था। मैंने ये कहना था कि आपका जाना जरूरी है क्या मलेशिया? उनेजा फौरन कहकर चुप कर गई थी। ओहो, तो मेरी मिसेज मेरे लिए उदास हो रही है। जुमार ने उनेजा के हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं बस। उनेजा ने फौरन अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा तो जुमार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। इधर देखो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। जुमार ने थोड़ा झुककर उनेजा की तरफ देखा तो उनेजा ने आंखों में हैरत लिए जुमार की तरफ देखा। लेकिन आपने जो खाने के टाइम कहा वो। उनेजा को समझ नहीं आ रही थी कि जुमार चाह क्या रहा है। वो भी ठीक कहा मैंने, लेकिन मैंने ये कब कहा कि मैं घर से अकेला जा रहा हूँ? ये ऐसा हो सकता है क्या कि मैं अपनी मिसेस को अकेला छोड़कर खुद इतने दिनों के लिए चला जाऊं? मुझे वहां कोई और पसंद आ गई तो? जुमार जो इतनी संजीदगी से बात कर रहा था, जिसको सुनकर उनेजा दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि वो जुमार के साथ जा रही है, लेकिन जुमार की आखिरी बात सुनकर उनेजा ने अपने हाथ जुमार के हाथों से अलग कर लिए थे। आप बहुत बुरे हैं। उनेजा के जवाब सुनकर जुमार का कहका बुलंद हुआ था। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे पता है कि मेरी जंगली बिल्ली अगर मुझे किसी के साथ देख लेगी तो उसे वहीं मार देगी, इसलिए बेफिक्र हो जाओ और पैकिंग शुरू कर दो, परसों हम लोग जा रहे हैं। जुमार ने कहते हुए उनेजा की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो मुस्कुराहट जिसे देखने के लिए वो बेचैन था। आज जुमार को लगा कि उनेजा ने दिल से उसे माफ कर दिया था। मलिक बिसात की सारी रसूमात हो गई थी। मलिक बिसात का केस एक गुमनाम केस बन गया था। मैरिज की तरफ से उस पर मजीद कार्रवाई नहीं की गई थी। फेरोज अली को मैरिज पर शक था, लेकिन उसे मैरिज को कुछ नहीं कहा था। वो खुद भी चाहता था कि मलिक बिसात रास्ते से हट जाए। अब चाहे उसकी वजह मैरिज हो या कोई और, फेरोज अली को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैरिज कहाँ जा रही हो? फेरोज अली ने मैरिज को तैयार होकर बाहर जाते देखा तो कहा, डैड एक दो बहुत ज़रूरी काम है, वो करने हैं, कुछ देर में आ जाऊंगी। महरिश ने कहा, लेकिन महरिश तुम इद्दत में हो, इस तरह बाहर निकलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लोग बातें भी करेंगे। जो काम है मुझे बता दो, मैं कर दूंगा। फेरोज अली की बात सुनकर महरिश ने सांस अंदर की तरफ खींचते हुए कंधे पर डाला बैग टेबल पर रखा। नहीं डैड, वो काम आप नहीं कर सकते, मैं खुद ही कर लूंगी इद्दत के बाद। महरिश ये कहते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई थी। कुछ मत सकून के जी लो जुमार, फिर तुम्हें अपना वजूद ही जहर लगेगा। जो मैं तुम्हारे साथ करने जा रही हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें ऐसा दर्द दूंगी जिसकी दवा मौत के सिवा कोई नहीं होगी। अगर मैं बर्बाद हुई हूँ तो तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगी। तुमने मुझे रिजेक्ट करके अच्छा नहीं किया, वो भी अपनी उस सो कॉल्ड बीवी के लिए। महरिश अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी आंखों में गुस्सा और वहशत लिए खड़ी थी। अगले दिन जुमार दोपहर को ही घर आ गया था। रात को मलेशिया की फ्लाइट थी। जुमार ने मुर्तजा बेग और शहनाज बेगम को बता दिया था कि वो उनेजा को साथ लेकर जा रहा है, जिस पर दोनों पुरसुकून हो गए थे। शहनाज बेगम के ठीक होने के बाद मुर्तजा बेग ने शहनाज बेगम को जुमार के बारे में सब बता दिया था और कुछ उनेजा से वो सुन लेती थी। इसलिए जहां मुर्तजा बेग की ख्वाहिश थी कि उसका बेटा अपनी जिंदगी में खुश रहे, वहीं शहनाज बेगम भी उनेजा और जुमार की खुशियों की दुआ करती थी। उनेजा, जुमार ने घर आते ही अपने कमरे में देखा तो उनेजा वहां नहीं थी। जुमार शहनाज बेगम के कमरे में गया, लेकिन वहां भी उनेजा नहीं थी। दोनों कमरों में देखने के बाद जुमार किचन में गया तो वहां भी उनेजा नहीं थी। मिस नाजिया, ये उनेजा कहाँ है? जुमार ने किचन में सिर्फ मिस नाजिया को देखकर कहा। जुमार साहब, वो ड्राइंग रूम में है। मुर्तजा बेग और शहनाज बेगम के साथ कोई गेस्ट आए हैं। मिस नाजिया के बताने पर जुमार के माथे पर अचानक बल पड़ गए थे। मेहमान? कौन से मेहमान? शायद उनेजा के भाई और भाभी होंगे। जुमार ने खुद कयास किया और ड्राइंग रूम की तरफ चला गया था। लेकिन ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही जुमार के कदम वहीं रुक गए थे जब उसने अपने सामने सोफे पर जिब्रान शाह को बैठे देखा था, जिसके साथ वाले सोफे पर उनेजा बैठी थी और दोनों में इतना फासला नहीं था। साथ वाले सोफे पर मुर्तजा बेग और शहनाज बेगम बैठे थे। मुर्तजा बेग ने जुमार की तरफ देखा। जुमार, तुम आ गए, अच्छा हुआ। मुर्तजा बेग की बात को इग्नोर करते हुए जुमार उनेजा के पास आया। मुझे एक गिलास पानी ला दो। जुमार के इस जवाब पर जहां मुर्तजा बेग और शहनाज बेगम को हैरत हुई थी, वहीं जिब्रान शाह ने अपने सामने ही पड़े टेबल पर पानी के जग और ग्लास को देखा था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जुमार का मकसद उनेजा को उससे दूर बिठाना था। अब वो सबके सामने तो ये नहीं कह सकता था ना।
उनैज़ा जो जिब्रान शाह से केस के बारे में तमाम तफसीलात सुन रही थी। जुमार के यूं अचानक आने पर एक तरफ उसे खुशी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ जुमार के माथे पर आए बल देखकर वो थोड़ा घबरा गई थी। जी, मैं लेकर आती हूँ। उनैज़ा भी वहां से कोई दूसरी बात कहे बगैर उठकर चली गई थी। कैसे हैं आप जिब्रान शाह? जुमार ने उनैज़ा के जाते वही उसी जगह सोफे पर बैठ गया था। मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आजकल क्या हो रहा है? सुनने में आ रहा है कि आपका बिजनेस बहुत तरक्की कर रहा है। जिब्रान शाह ने टांग पर टांग रखते हुए कहा, जिस पर जुमार ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। इतनी देर में उनैज़ा पानी का ग्लास लिए अंदर आ गई थी। उसने जुमार की तरफ पानी का ग्लास किया, जैसे जुमार ने पकड़ते हुए सिर्फ एक घूंट लिया और ग्लास टेबल पर रख दिया था। उनैज़ा जुमार के पास ही सोफे पर बैठ गई थी। तुम लोग बातें करो, मैं चाय का कह देती हूँ। शहनाज बेगम ही कहते हुए वहां से उठकर चली गई थी। मिसेस जुमार, आपने मुझे अटॉर्नी बनाया है तो आपको कुछ पेपर्स साइन करने होंगे। इस पर साइन कर दें, उसके बाद आपको अदालत में नहीं जाना पड़ेगा। जिब्रान शाह ने उनैज़ा की तरफ देखते हुए फाइल हाथ में पकड़ी और सोफे से उठकर उनैज़ा के पास आने लगा था कि जुमार बोल पड़ा, मुझे दो, मैं साइन करवाता हूँ। जुमार के बोलने पर और जिब्रान शाह के हाथों से अचानक फाइल पकड़ने पर मुर्तज़ा बेग ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी और वहीं उनैज़ा जुमार के इस रवैये को समझ नहीं पा रही थी। जी बिल्कुल, आप करवा लें। जिब्रान शाह ने फाइल जुमार के हाथ में देते हुए दोबारा फिर से सोफे पर बैठ गया था। जुमार ने फाइल पकड़ते हुए उनैज़ा की तरफ की और अपनी कोट की पॉकेट से पेन निकालते हुए उनैज़ा की तरफ करते हुए जहां पर साइन करते थे उसे बताकर सोफे की पोस्ट से टेक लगाकर बैठ गया था। जिब्रान शाह जुमार को उनैज़ा के लिए इतना हसास देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। इतने में शहनाज बेगम मिस नाजिया के साथ चाय लेकर आ गई थी। उनैज़ा ने फाइल पर साइन करके उसे बंद करके टेबल पर रख दिया था। जुमार साहब, आपको तो यकीनन पता होगा कि मलिक बिसात का कत्ल हुआ है। जिब्रान शाह ने चाय का कप पकड़ते हुए जैसे ही कहा, उनैज़ा जो अपने दाएं हाथ की पहली उंगली में पहनी रिंग को गोल गोल घुमा रही थी, उसका हाथ वहीं रुक गया था। उसने फौरन गर्दन मोड़कर जुमार की तरफ देखा था, जो जिब्रान शाह की बात पर दांत पीस कर रह गया था। हाँ, मुझे पता चला था, लेकिन मेरे लिए वो इतना खास नहीं था कि मैं ज्यादा मालूम करवाता। जुमार ने कहते हुए टेबल से अपने लिए कॉफी का कप पकड़ा। ठीक कहा आपने, लेकिन आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता कि कुछ दिन पहले ही तो मिसेस मलिक बिसात की माँ का इंतकाल हुआ था और अब मलिक बिसात का। जिब्रान शाह का एक और इंकशाफ उनैज़ा के लिए पहाड़ तोड़ने के बराबर था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जुमार ने उससे ये सब कुछ छुपाया था और उस दिन महरिश की कॉल आना और उसका जुमार से मिलना भी यही वजह था। उनैज़ा जुमार को मुसलसल देख रही थी और जुमार अपने चेहरे पर उनैज़ा की नज़रों को महसूस कर रहा था। जिब्रान साहब, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अब कोई पुलिस वाला या कोई वकील नहीं हूँ जो मैं तफ्तीश करता। मेरे लिए सब नॉर्मल था। जुमार ने बात को कवर करना चाहा, लेकिन बात अब निकल चुकी थी। ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन शायद आप कुछ ज्यादा ही बेखबर हो गए हैं। आपको नहीं मालूम कि मलिक बिसात के कत्ल और महरिश की कार्रवाई न करवाने पर आपका नाम भी आ सकता है, बल्कि लोग तो कुछ अजीब बातें कर रहे हैं। जिब्रान शाह की बात सुनकर जुमार ने हाथ में पकड़े कप को दोबारा से टेबल पर रखा। इससे पहले सूरत हाल को देखते हुए मुर्तज़ा बेग कुछ कहते, जुमार बोल पड़ा, क्या बात कर रही हैं लोग? जुमार ने अपनी गर्दन को बल देते हुए लफ्जों को दबा कर कहा, यही कि मलिक बिसात के कत्ल होने से पहले महरिश आपसे मिलने आई थी। कुछ लोग तो इसको इत्तेफाक कह रहे हैं, तो कुछ लोग उसको अलग ही रंग दे रहे हैं। जिब्रान शाह की बात सुनकर अंदाजा हो गया था कि जिब्रान शाह के दिमाग में क्या चल रहा है। जुमार ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और जिब्रान शाह की तरफ देखा। तो आप मेरी जासूसी करवा रहे थे? जासूसी करवाने की क्या जरूरत थी जिब्रान साहब? मुझे बता देते, मैं आपको अपनी पूरे दिन की तफसीलात वीडियो के साथ दे देता। जुमार की बात पर जिब्रान शाह को अपनी इस हरकत पर अफसोस हुआ था, लेकिन वो था भी ऐसा, अपने काम में किसी अपने को भी रियायत नहीं देता था। इसलिए जुमार का जवाब सुनकर जिब्रान शाह खामोश हो गया था, लेकिन उनैज़ा वहां से बगैर कुछ कहे उठकर चली गई थी। उनैज़ा का यूं उठना जहां सबको नॉर्मल लगा था, वहां जुमार को एहसास हो गया था कि उसका ये रिएक्शन ये सब सुनने के बाद हुआ था। तुम लोग क्या बातें लेकर बैठ गए हो? जिब्रान जुमार को बुरहान अब्बासी की फाइल दिखाओ। मुर्तज़ा बेग की बात पर जिब्रान शाह ने मुस्बत में सर हिलाया। मुर्तज़ा बेग को अंदाजा हो गया था कि माहौल मजीद गर्म हो रहा था। मुर्तज़ा अंकल, मेरी बातों का बुरा मत बनाइएगा। आप लोगों का पहले से फैरोज अली के साथ मसला चल रहा है और फिर ये सब वाक़यात हो जाए और महरिश का जुमार से मिलना जुमार को शक के दायरे में ला सकता है। जिब्रान शाह ने अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए खुद को क्लियर किया था। ठीक कहा तुमने, लेकिन अभी बुरहान अब्बासी के केस के बारे में बात कर लेते हैं, इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। मुर्तज़ा बेग ने बात को ख़त्म करते हुए कहा, तो
जिब्रान शाह ने अब तक की जितनी मालूमात इकट्ठी की थी वो फाइल जुमार के सामने रख दी थी। जुमार ने कुछ सोचते हुए अभी फाइल खोली ही थी कि किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आई, जिस पर जुमार एकदम चौंक गया था। उसके माइंड में फौरन उनेजा का ख्याल आया। जुमार ने फाइल वहीं बंद की। सबकी तवज्जो भी इसी आवाज़ पर थी। शहनाज बेगम उठने वाली थी कि जुमार बोल पड़ा, मैं देखता हूँ। यह कहते हुए जुमार जल्दी से किचन की तरफ चला गया था। क्या हुआ है? उनेजा को किचन के फर्श पर हाथ पकड़े बैठे देखकर जुमार का दिल वहीं धड़कना रुक गया था। वो फौरन उसके पास आया। उनेजा जो चूल्हे पर रखे दोपहर के खाने को देख रही थी और साथ ही जिब्रान शाह की बातें और महरिश की कॉल और जुमार से मिलना सब उसके दिमाग में घूम रहा था। और इसी न जाने अनजाने में उनेजा का हाथ सॉस पैन को लगा। उनेजा का हाथ जलने के साथ सॉस पैन भी नीचे गिर चुका था। मिस नाजिया, मिस नाजिया! जुमार उनेजा का जला हाथ देखकर गुस्से में चिल्ला उठा। लेकिन जैसे ही जुमार ने उनेजा का हाथ पकड़ना चाहा, उनेजा ने अपना हाथ फौरन पीछे कर लिया था। उनेजा के इस रवैये को देखते हुए जुमार का दिल एकदम डूब सा गया था। क्या हुआ है तुम? मुझे हाथ पकड़ने क्यों नहीं दे रही? जुमार ने हैरत से कहा तो उनेजा फर्श से उठ गई थी। थोड़ा सा जला है, ठीक हो जाएगा। उनेजा ये कहते हुए आगे को बढ़ी ही थी कि जुमार ने उनेजा को बाजू से पकड़ते हुए रोका। इतनी देर में मिस नाजिया जो उनेजा का हाथ जले देखकर फौरन फर्स्ट एड बॉक्स लेने चली गई थी, वो ले आई थी। लेकिन जुमार और उनेजा को इसी तरह देखकर वो बॉक्स वहीं रखकर वापस चली गई थी। थोड़ा जला है या ज्यादा? दर्द तो इतना ही होता है ना? दिखाओ मुझे, मैं दवाई लगाता हूँ, जुमार ने नरमी से कहा। ठीक कहा आपने। जख्म छोटा हो या बड़ा, दर्द तो दर्द ही होता है। उनेजा ने कहते हुए जुमार के हाथ से अपना बाजू छुड़वाया और अपने कमरे की तरफ चली गई थी। उनेजा के जाते ही जुमार ने गहरा सांस लिया। जुमार को अंदाजा था कि उनेजा को वो सब सुनकर बुरा लगा था, लेकिन वो इस हद तक नाराज हो जाएगी ये उसे अंदाजा नहीं था। जुमार फर्स्ट एड बॉक्स पकड़ते हुए उनेजा के पीछे कमरे में चला गया था। उनेजा, इतनी छोटी सी बात को क्यों इशू बना रही हो? देखो तुम्हारा हाथ जला हुआ है, मुझे इस पर दवाई लगाने दो। जुमैर उनेजा का हाथ देकर बेचैन हो रहा था। आपके लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं। उनेजा के जवाब पर जुमार ने उनेजा की तरफ देखा। बस उनेजा, बहुत हो गया तुम्हारा ये सब। जुमार की आवाज ऊंची हो गई थी, जिस पर उनेजा एकदम काम गई थी। हर वक्त अपनी बात करती रहती हो, अपनी बात मनवाती हो, कभी दूसरों की भी सुन लिया करो। अब चुप करके बेड पर बैठ जाओ, जब तक मैं दवाई न लगा दूं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज न निकले, ओके? जुमार आज इतने अरसे के बाद उनेजा पर चिल्लाया था, जिसे देखते ही उनेजा का सांस वहीं रुक गया था। वो अंदर से डर गई थी। उसे एक लम्हे के लिए लगा कि वो पहले वाला जुमार वापस आ गया था। जुमार ने उनेजा को बाजू से पकड़ते हुए बेड पर बिठाया और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए उस पर दवाई लगाने लग गया था। उनेजा जो जुमार के यूं बोलने पर चुप तो कर गई थी, लेकिन उसका दिल जो तकलीफ से भरा हुआ था वो आंसू की शक्ल में बहना शुरू हो गया था। उनेजा की आंखों से आंसू निकलकर जब उसकी गोद में गिरे तो जुमार जो उनेजा को दवाई लगा रहा था उसके हाथ वहीं रुक गए थे। अरे मिसेस, रो क्यों रही हो? मैंने डांट दिए इसलिए। जुमार ने अपने दोनों हाथ उनेजा की गालों पर रखते हुए उस पर गिरे आंसुओं को साफ करते हुए कहा। आई एम सॉरी मिसेस, मैं अगर तुम्हें ये सब ना कहता तो तुम दवाई नहीं लगाती, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए ऐसा बोला मैंने। नहीं तो मैं अपनी मिसेस को ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? मेरी इतनी जरूरत कहाँ इस नाचीज शोहर की। जुमार की बात सुनकर उनेजा जो रो रही थी, उसने अपने गालों से जुमार का हाथ पीछे किया। कुछ बोलोगी नहीं क्या? नाराज हो मुझसे? देखो, मुझे पता है कि तुम्हें वो सब सुनकर बुरा लगा है, लेकिन मैं खुद तुम्हें नहीं बताना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि अब हमारे दरमियान कोई मसला हो, इसलिए महरिश और उसकी फैमिली अब मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। बस तुम मेरे लिए अहमियत रखती हो, और ये सब बताकर मैं तुम्हें उदास या परेशान नहीं करना चाहता था। उनेजा जुमार के लहजे की मिठास से उनेजा का गुस्सा जो उसे दुख था वो नम पड़ रहा था, और वो थी भी ऐसी ही जिससे मोहब्बत की जाए उसके सामने दूसरा बेबस हो ही जाता है। और उनेजा जिस शिद्दत से जुमार से मोहब्बत करती थी, उसकी कही हर बात पर यकीन करना वो अपना ईमान समझती थी। लेकिन हमारे दरमियान आपने ये फासला तो रखा है ना कि आप मुझसे बातें छुपाते हो। मुझे लगता था कि हमारा रिश्ता जैसे भी बना और जैसे भी चल रहा है, लेकिन अब मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और मुझसे बातें छुपाई। उनेजा की बात पर जुमार मुस्कुरा उठा और बेड पर तिरछा लेटकर सर के नीचे बाजू रखते हुए उसने उनेजा की तरफ देखा। दिल कर रहा है कि तुम ऐसे ही मुझसे शिकायतें करती रहो और मैं सर के नीचे हाथ रखकर तुम्हें यूं ही देखते ही अपनी सारी जिंदगी गुजार दूं, लेकिन ये जो तुम रोने लग जाती हो ना, वो ठीक नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि तुम रोते हुए वो कार्टून में माशा देखी है, वैसे लगती हो। जुमार ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए अपनी हंसी दबाई थी।
क्या? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? एक तो आपने मुझसे बातें छुपाई, ऊपर से मेरा ही मजाक उड़ा रहे हैं। उनैजा ये कहते हुए बेड से उठी थी कि जुमार ने उनैजा को जाते हुए देख उसके बाजू को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचा। उनैजा घूमकर जुमार के ऊपर गिर गई। उनैजा का एक हाथ जुमार के सीने पर था और दूसरा बेड पर। उनैजा के बाल जुमार के कंधों पर पड़ रहे थे। छोड़े मुझे, मुझे अब से बात नहीं करनी। उनैजा ने उठना चाहा लेकिन जुमार की मजबूत गिरफ्त में बेबस हो गई थी। चलो आज एक वादा करते हैं, तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगी और मैं तुम्हें खुश रखने के लिए कोई बात नहीं छुपाऊंगा। जुमार के इस अजीब से वादे को सुनकर उनैजा ने आंखें सुकेड़ते हुए जुमार की तरफ देखा। मतलब मैं भी तुमसे कुछ बात नहीं छुपाऊंगा? अब खुश? जुमार की बात पर उनैजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। तुमने सामान पैक कर लिया था? जुमार ने उनैजा की कमर को अपनी बाहों के हिसाब में लेते हुए कहा, जिस पर उनैजा ने अपना जला हुआ हाथ दिखा दिया। मतलब ये काम भी मुझे करना होगा? तो उसके लिए मुझे एनर्जी भी चाहिए, तो मिसेस मुझे एनर्जी दोगी? जुमार ने कहते हुए उनैजा के चेहरे के करीब आया कि उनैजा मुस्कुराते हुए जल्दी से खुद को जुमार की बाहों की गिरफ्त से आज़ाद किया था। क्या है मिसेस, अब इतना भी हक नहीं है क्या मेरा? जुमार की बात सुनकर उनैजा अलमारी की तरफ मुड़ी। क्या आप अपनी मोहब्बत का इजहार ऐसे करेंगे? उनैजा ने अपने होंठों को काटते हुए कहा। इतने में जुमार ने उनैजा को पीछे से आते हुए अपनी बाहों में भर लिया था। तो फिर मेरी मिसेस को कैसा चाहिए इजहार मोहब्बत? जुमार की बात पर उनैजा ने अपना रुख जुमार की तरफ किया। आप इतने समझदार हैं तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उनैजा ने जाते हुए जुमार की टाई को ठीक करते हुए कहा। यह भी ठीक है, इसका मतलब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मिसेस तुम बहुत स्वीट हो, जुमार ने ऊंची आवाज में कहा, जिस पर उनैजा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। सामान पैक कर दें? उनैजा ने कमरे से जाते हुए जुमार को जवाब दिया। जिब्रान शाह कुछ देर उनैजा और जुमार का वेट करता रहा, लेकिन जब दोनों नहीं आए तो उसने मुर्तज़ा बेग से जाने की इजाज़त मांगी, जिस पर मुर्तज़ा बेग ने जिब्रान शाह को रुकने का कहा, लेकिन वो अपने काम की मसरूफियत का बहाना बनाकर बेग हाउस से चला गया था। जुमार और उनैजा की रात 9 बजे की फ्लाइट थी। फ्लाइट से पहले उनैजा ने हसीब और दरख्शां को अपने मलेशिया जाने का बता दिया था और शहनाज बेगम ने अपनी दुआओं के साथ दोनों को रुखसत किया था। रात के 2 बज गए थे जब दोनों ने कोलालमपुर पोर्ट पर कदम रखा था, जो मलेशिया का अहम बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट माना जाता था। रात के इस पहर भी हर तरफ लोगों का आना जाना लगा हुआ था। उनैजा जो सारे सफर में जुमार के कंधे पर सर रखे सो रही थी, अपनी मुंदी मुंदी आंखों से वहां के लोगों को हैरत से देख रही थी। इतने में होटल की गाड़ी दोनों को पिक करने आ गई थी। हर तरफ जगमगाती रोशनियां ये जाहिर कर रही थीं कि जैसे यहाँ के लोग दिन के साथ रात को भी जागते हों। गाड़ी होटल के मेन गेट पर आकर रुकी, जो कोलालमपुर के मशहूर जगह पेट्रोनास ट्विन टावर के नज़दीक वाक़ था। गाड़ी से निकलते उनैजा ने अपनी दाईं जानिब गर्दन उठाकर दूर से नजर आने वाले पेट्रोनास ट्विन टावर्स को देखा, जिसकी नज़र वहीं इसी टावर पर रुक गई थी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टाइम में वो अक्सर अपनी फ्रेंड से इसके बारे में सुनती थी, लेकिन आज उसे अपनी आंखों से देखकर यकीन नहीं हो रहा था। मिसेस चलें या यहीं सारी रात गुजारनी है? खुद तो तुम सारे सफर में मेरे कंधे को तकिया बनाकर सोती रही हो, लेकिन मुझे बहुत थकावट हो रही है। जुमार उनैजा से बात कर रहा था, लेकिन उनैजा की नज़र उसी टावर्स की तरफ थी। ये वही टावर्स है ना जिसमें 28 से ज़्यादा फ्लोर हैं? उनैजा ने जुमार की बात को इग्नोर करते हुए कहा, तो जुमार ने सीने पर हाथ बांधते हुए उनैजा की तरफ देखा। जी मैडम, ये वही हैं। अगर आप अंदर चलेंगी तो हम सुबह वहां जाकर इन टावर्स को नज़दीक से देखेंगे। जुमार ने उनैजा के कंधे पर एक हाथ रखते हुए दूसरे हाथ की पहली उंगली से सामने नजर आते टावर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस पर उनैजा को यकीन नहीं हो रहा था कि वो हकीकत में यहाँ पे है। जुमार के कंधे पर हाथ रखने पर वो हकीकत की दुनिया में वापस आ गई थी। चलें अब? उनैजा को अपनी तरफ देखते हुए जुमार ने कहा, तो उनैजा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और दोनों होटल के अंदर चले गए थे। सफर की थकान की वजह से जुमार जल्दी सो गया था और उनैजा, जिसकी नींद अब उड़ चुकी थी, वो सुबह होते ही उठ गई थी। फ्रेश होने के बाद उनैजा ने बेड पर सोए हुए जुमार की तरफ देखा, जो अपनी गहरी काली आंखों को अपनी घनी पलकों में कैद किए सो रहा था। उनैजा ने थोड़ा आगे झुककर जुमार की घनी पलकों को अपने नाजुक हाथों की उंगलियों की पोरों से छूते ही उसके चेहरे पर सकून आमेज मुस्कुराहट आ गई थी। वो जुमार को उठाना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि जुमार कल सुबह से 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं किया। जुमार के पास से उठते हुए वो खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई थी, जहां से बाहर का नज़ारा आंखों को सुकून दे रहा था। जिंदगी कभी आसान नहीं होती। वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें धनक के रंग तो आ जाते हैं, लेकिन एक तेज हवा का झोंका
कभी भी किसी भी वक्त आकर उन सब रंगों को उड़ा कर ले जा सकता था। आज से 5 माह पहले वो जिस शख्स को अपनी जिंदगी में एक भेड़िया समझ रही थी, आज वो उसके लिए किसी ख्वाब में आने वाले शहजादे से कम नहीं था, जो अपनी शहजादी की जरा सी तकलीफ पर तड़प उठता था और दुनिया की सारी खुशियां उसके आंचल में भरने के लिए खुद को फना करने के लिए भी तैयार था। अपनी सारी सोचों के साथ उनैजा ने एक गहरा सांस लिया और गर्दन मोड़कर जुमार की तरफ देखा, जो करवट ले चुका था। जुमार ने करवट लेने के साथ ही अपनी आंखें खोली, जब उसका हाथ उनैजा के वजूद पर आने के बजाय खाली बेड पर लगा था। जुमार ने फौरन आंखें खोलते हुए जैसे कमरे की चारों तरफ नजर दौड़ाई, तो उसे दाईं जानिब खिड़की के पास खड़ी अपनी कुल कायनात नजर आ गई थी। जैसे देखते ही जुमार ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए गहरा सांस लिया था। तुम इतनी जल्दी उठ गई हो? जुमार ने घड़ी पर टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। जुमार की आवाज़ सुनते ही उनैजा ने फौरन पलट कर देखा। मैंने कहीं आपको उठा तो नहीं दिया? उनैजा को लगा कि खिड़की से आने वाली रोशनी से जुमार उठ गया था। नहीं, तुम मुझे उठाती तो मुझे पता न चलता क्या? जुमार के जुमाइनी बात उनैजा को समझ आ गई थी। क्या मतलब? उनैजा ने अनजान बनते हुए कहा। उफ मेरे अल्लाह, कैसी बीवी दी है जिसको मतलब भी बताना पड़ेगा। जुमार ने बेड से उठते हुए कहा तो उनैजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, जैसे जुमार ने देखकर अनजान बन गया था। मैं फ्रेश हो जाता हूँ, तुम तैयार हो जाओ, फिर नाश्ता करके तुम्हें कोलालमपुर घुमाता हूँ। जुमार ने जाते हुए उनैजा के गाल को नरमी से छुआ और फ्रेश होने चला गया था। आपकी मीटिंग कब तक है? और वो आबिद जहांगीर साहब भी पहुंच गए हैं क्या? उनैजा ने नाश्ता करते हुए जुमार को जैसे कहा, जुमार का ब्रेड का निवाला उसके हलक में फंस गया था। ये तुम्हें आबिद जहांगीर कहाँ से याद आ गया? जुमार ने जूस का घूंट लेते हुए कहा। वैसे ही कहा मैंने। उनैजा ने कंधे उचकाते हुए कहा तो जुमार ने उनैजा की तरफ देखा। कल शाम को उनके साथ मीटिंग है। वो तो आज का कह रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि तुम थकी हुई होगी। जुमार ने संजीदा लहजे में कहा। मीटिंग का सुनकर उनैजा एकदम शॉक्ड हो गई थी कि ये वही जुमार है जो उसे बिजनेस मीटिंग में ले जाने के लिए किसी सूरत नहीं मान रहा था, और आज ये खुद कह रहा है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? खुद ही तो तुम्हें शौक है बिजनेस मीटिंग में जाने का, तो मैंने इसलिए कहा। जुमार नहीं चाहता था कि उनैजा को उसके सारे प्लान का पता चल जाए, जो उसने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था, और मलेशिया टूर में तो आबिद जहांगीर का नामो निशान भी नहीं था। मैंने कुछ कहा? उनैजा के जवाब पर जुमार मुतमईन हो गया था। दोनों नाश्ते के बाद बाहर घूमने निकल गए थे। जुमार उनैजा को कोलालमपुर में सबसे ज्यादा फेमस जगह पर लेकर गया था। जुमार का हाथ थामे उनैजा इस हसीन पल के जुगनुओं को अपनी मुट्ठी में कैद कर रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान जुमार को चीख चीख कर बता रही थी कि वो इस थामे हुए हाथ को कभी भी नहीं छोड़ना चाहती है। हम यहाँ क्यों आए हैं? जुमार ने उनैजा को जैसे ही शॉपिंग मॉल में लेकर गया तो उनैजा ने जुमार की तरफ देखते हुए कहा। क्या मतलब? बीवियों को तो शौक होता है शॉपिंग करने का, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। जुमार ने शॉपिंग मॉल में नजर दौड़ाते हुए कहा, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। लेकिन वो जो हम इतने बैग भर कर लाए हैं वो? उनैजा ने हैरत से कहा तो जुमार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। तुम दुनिया की वाहिद बंदी हो जिसका शौहर शॉपिंग का कह रहा है और उसकी बीवी मना कर रही है। जुमार ने हंसते हुए कहा तो उनैजा ने बुरा सा मुंह बना लिया था। आओ यहाँ चलते हैं। जुमार को इस मॉल में पाकिस्तानी क्लॉथ शॉप मिल ही गई थी जिसे वो ढूंढ रहा था। यहाँ भी पाकिस्तानी कपड़े मिलते हैं? शॉप के अंदर आते ही उनैजा ने कहा। हर मुल्क में कुछ शॉप ऐसी होती हैं जहाँ हर मुल्क की वैरायटी मिलती है। जुमार कहकर उनैजा को फैंसी साइड पर ले गया था। इनमें से तुम्हें कौन सा कलर अच्छा लगता है? जुमार ने सामने हैंग हुई लॉन्ग फ्रॉक की तरफ देखते हुए कहा। ये सब मैं लेकर क्या करूंगी? मेरे पास तो इतनी ज्यादा फ्रॉक हैं। उनैजा का जवाब सुनकर जुमार ने अपने होंठों को दबाते हुए कुछ सोचा। वो हमने मीटिंग में जाना है ना, तो उसके लिए। जुमार ने कहते हुए फौरन अपनी आंखें मींच ली थी। वो जानता था कि उसने क्या बेवकूफ़ी वाली बात की थी। जुमार की बात सुनकर उनैजा शॉक्ड अंदाज में जुमार की तरफ देखते हुए फ्रॉक वाले सेक्शन की तरफ चली गई थी। काफ़ी देर तमाम कपड़ों को देखने के बाद उनैजा ने ग्रे कलर की शेफून की लॉन्ग फ्रॉक पसंद की, जिस पर डार्क ग्रे कलर का काम हुआ था। उनैजा के फ्रॉक पसंद आने पर जुमार जो सामने रखे सोफे पर 1 घंटे से बैठा था, उसने शुक्र का सांस लिया। चलो चलते हैं। वैसे मैंने अभी अभी ये फैसला किया है कि मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग किया करूंगा। जुमार ने कहते हुए बिल पे किया था। क्यों? मैं खुद भी तो कर सकती हूँ ना। उनैजा को जुमार की बात समझ नहीं आ रही थी। अगर तुम 1 घंटे में 1 फ्रॉक पसंद कर सकती हो
तो तुम्हारी बाकी की शॉपिंग में तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। जुमार की बात पर उनेजा दांत पीस कर रह गई थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकी थी। अगले दिन रात के 8 बजे उनेजा तैयार होकर शीशे के सामने खड़ी थी। ग्रे कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहने, बालों को शानों पर बिखेरे, हल्का सा मेकअप किए वो कुछ आज अलग ही लग रही थी। थोड़ी देर बाद जुमार कमरे में दाखिल हुआ। कमरे का दरवाजा खोलते ही अपने सामने खड़ी उनेजा को देखकर उसकी नजर वहीं टिक गई थी। एक लम्हे को जुमार ने ख्वाहिश की कि वक्त यहीं रुक जाए। चले? उनेजा की आवाज पर जुमार होश की दुनिया में वापस आया था। हाँ चलो। जुमार ने अपना हाथ उनेजा की तरफ बढ़ाया तो उनेजा ने मुस्कुराते हुए जुमार का हाथ थामा और उसके साथ चल पड़ी। थोड़ी ही देर में दोनों पेट्रोनास ट्विन टावर्स के सामने खड़े थे। यहाँ क्या मीटिंग यहाँ है? उनेजा की हैरत की इंतहा नहीं थी कि वो पेट्रोनास ट्विन टावर को करीब से देख रही थी। जी यहाँ ही है, मैंने वादा किया था कि तुम्हें यह दिखाऊंगा, तो सोचा क्यों ना मीटिंग भी यहाँ ही रख लूं। तो चलें फिर। जुमार उनेजा का हाथ पकड़े उनेजा को साथ लिए पेट्रोनास ट्विन टावर्स के अंदर उस फ्लोर तक जा रहा था जहां उसने उनेजा के लिए सरप्राइज रखा हुआ था। लिफ्ट से निकलते ही दोनों बाहर आ गए थे। उनेजा अपने इर्द गिर्द देख रही थी जब जुमार ने उनेजा को दोनों कंधों से पकड़ते हुए उसका रुख अपनी तरफ किया था। क्या हुआ? उनेजा ने हैरत से कहा। तुम्हें एक बात बतानी थी कि वो यहाँ कोई मीटिंग नहीं है और ना ही यहाँ हमारे साथ कोई आबिद जहांगीर आया है। जुमार की बात सुनकर उनेजा ने अपना सांस अंदर की तरफ खींचा। मेरा तुम्हें यहाँ लाने का मकसद सिर्फ तुम हो, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना और तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखना था। जुमार के यूं अचानक ये सब कहने पर उनेजा को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे। वो तो अभी इसी शौक में थी कि जुमार ने ये सब कब प्लान किया था। उनेजा को यूं खामोश देखकर जुमार ने उसका हाथ पकड़ा और कुछ कदमों के फासले पर जाते हुए उसने पेट्रोनास ट्विन टावर्स में जो फ्लोर पर स्वीट बुक करवाया था उसका दरवाजा खोला। अंदर उनेजा अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गई थी। उससे अपनी शादी का पहला दिन याद आ गया था, जैसे उस रूम को सजाया गया था। फर्क बस इतना था कि वहां सफेद फूल थे और यहाँ हर तरफ रंग बिरंगी रोशनियों और सुर्ख गुलाब ने जगह ली हुई थी। अंदर आने के बाद जुमार ने उनेजा को यूं खामोश देखकर उसके मुकाबले आकर खड़ा हो गया था। देखो मिसेस, तुमने कहा था ना कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार ऐसे तो नहीं कर सकता। तो अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए तुम्हारे इस नाचीज शौहर ने यह सब किया है। तो क्या तुम्हें यह सब पसंद आया? जुमार की बात उनेजा के लिए हैरत से कम नहीं थी। वो अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए इतनी दूर उसे लेकर आएगा उससे सोचा भी नहीं था। जुमार उनेजा के जवाब का मुंतजर था। उनेजा ने जुमार के चेहरे की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए मुस्बत में सर हिलाया, जिस पर जुमार मुतमईन होकर गहरा सांस लिया था और साथ ही उनेजा के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए जुमार की आंखें झुकी हुई थी, जैसे वो किसी बात की तलाफी करना चाह रहा हो लेकिन कर नहीं पा रहा था। थोड़ी देर खामोशी के बाद जुमार ने उनेजा की तरफ देखा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया उनेजा। मैं शायद अंधा हो गया था। अपने जज्बात के मजरूह होने पर मुझे नजर नहीं आया कि मेरे सामने ही मेरा मुकद्दर है जो इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन मैं उसकी कदर नहीं कर पाया, जिसका मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहेगा। मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि क्या तुम मुझे मेरी सारी गलतियों के साथ कबूल करोगी? जुमार की बात ख़त्म होते ही उनेसा की आंखों में नमी आ गई थी। आज उसकी मोहब्बत सुरखरू हो गई थी और उसके सामने खड़ी थी। आंखों में नमी लिए और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उनेजा ने मस्बत में सर हिलाया तो जुमार के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने आगे बढ़कर उनेजा को अपनी बाहों में भर लिया था। जुमार को आज अपनी मंजिल मिल गई थी। उसके अंदर एक सुकून की लहर दौड़ गई थी। जुमार का मोहब्बत से उनेजा को गले से लगाना उनेजा के वजूद को मुकम्मल कर गया था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उनेजा को खुद से अलग करते हुए जुमार उनेजा को ड्रेसिंग टेबल के सामने ले गया था और अपनी पॉकेट से डायमंड का नेकलेस निकाला। ये मेरी मोहब्बत का एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, जो तुम्हें हमेशा मेरी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहेगा। जुमार ने कहते हुए वो नेकलेस उनेजा के गले में पहनाया, जिस पर उनेजा ने अपना हाथ रखते हुए मुस्कुराहट दी थी। बहुत प्यारा है। उनेजा के जवाब पर जुमार ने उनेजा को अपनी बाहों के हिसार में लेते हुए उनेजा की कमर पर गिरफ्त को मजबूत किया। मैं तुम्हारे आंचल में अपने इश्क के वो सारे रंग भर दूंगा जिसकी तुम हकदार हो, और तुम पर बस मेरा हक है और रखेगा। जुमार ने यह कहते हुए उनेजा की गर्दन पर नरमी से बोसा दिया तो उनेजा के वजूद में एक सर्द लहर दौड़ गई थी। उनेजा ने सांस अंदर की तरफ खींचते हुए खुद को जुमार से अलग किया था। क्या हुआ? जुमार ने उनेजा की तरफ देखते हुए कहा, जिसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी, जिसे जुमार महसूस कर सकता था। कुछ नहीं, वो
उनैज़ा को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे। वो शर्म व हया से खुद में सिमट रही थी। उनैज़ा के यूं शर्माने पर जुमार मुस्कुरा दिया था। मेरी मिसेस शर्माते हुए कितनी प्यारी लगती है। जुमार ने यह कहते हुए उनैज़ा के माथे पर अपने होंठ रख दिए थे, जिस पर उनैज़ा ने कोई मज़ाहमत नहीं की थी। जुमार और उनैज़ा की एक दूसरे के लिए बेइंतहा मोहब्बत और खुरबत ने दोनों को आज मुकम्मल कर दिया था। शहरयार जो ऑफिस में मौजूद था, उसके मोबाइल पर अचानक महरिश की कॉल आती देखकर वो चौंक गया था। पहले उसने महरिश की कॉल को इग्नोर किया, लेकिन मुसलसल कॉल आने की वजह से शहरयार कॉल उठाने पर मजबूर हो गया था। क्या बात है, मुझे क्यों कॉल कर रही हो? शहरयार ने कॉल उठाते ही रूड लहजे में कहा, लेकिन अगले ही लम्हे वो जैसे सकते में आ गया था। उसका वजूद वहीं मुंजमद हो गया था। मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे कर लूं? शहरयार, जिसका वजूद बर्फ की मानंद पड़ गया था, एक गहरी खामोशी के बाद उसने महरिश को जवाब दिया। दूसरी तरफ महरिश का जवाब सुनते ही शहरयार ने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बंद की। ठीक है, मैं कल तुम्हारे पास आ रहा हूं, और अगर ये बात झूठी निकली तो मैं तुम्हें वहीं अपने हाथों से मारूंगा। तुमने और तुम्हारे बाप ने बहुत जो कुछ हमारे साथ किया था, उसको तो हम माफ कर सकते हैं, लेकिन जो तुम कह रही हो, अगर ये भी तुम्हारी कोई चाल हुई तो तुम उसकी खुद जिम्मेदार होगी। शहरयार, जिसका वजूद तो सर्द पड़ा था, लेकिन उसका दिमाग गुस्से से उबाल खा रहा था, मैरिज को गुस्से से कहते हुए शहरयार ने फोन बंद कर दिया था। यह कैसे हो सकता है? नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। शहरयार ने अपने दोनों हाथ से अपना सर पकड़ते हुए खुद से बुड़बुड़ाते हुए कहा। सुबह हो चुकी थी। उनैज़ा जुमार का हाथ थामे उससे अपने सीने पर रखे सो रही थी। जुमार, जो कब का जाग चुका था, अपना दूसरा हाथ अपने सर के नीचे रखे अपनी नजरों को उनैज़ा पर जमाए चेहरे पर मुस्कुराहट लाए उसे देख रहा था। उनैज़ा ने सोते हुए करवट लेने के लिए जैसे ही जुमार की तरफ अपना चेहरा किया, उसकी आंख खुल गई थी, और जुमार को यूं अपने ऊपर नजरें जमाई देखकर उनैज़ा शर्माते हुए फौरन अपने चेहरे पर चादर ओढ़ गई थी। जुमार उनैज़ा की इस हरकत पर मुस्कुरा कर रह गया था। उसने अपने उस हाथ से जो उनैज़ा ने पकड़ा हुआ था, उनैज़ा के हाथ छोड़ने पर चादर का कोना पकड़ते हुए उनैज़ा के चेहरे से नीचे किया था। मिसेस जुमार बेग, मुझसे शर्माना कैसा? जुमार की मोहब्बत भरी आवाज़ सुनकर उनैज़ा, जिसका चेहरा अब चादर से बाहर था, उसने बगैर कुछ कहे अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपा लिया था। अच्छा, तो अब तुम अपने शोहर को तंग करोगी? जुमार उनैज़ा की यूं छोटी छोटी प्यार भरी हरकतों से लुत्फानंदोज हो रहा था। उनैज़ा अब भी चेहरा छुपाई हुई थी। ये बात है, मुझसे चेहरा छुपा रही हो तो मुझे भी बहुत से तरीके आते हैं मिसेस, सोच लो, फिर मत कहना। जुमार ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, तो उनैज़ा ने फौरन चेहरे से हाथ उठा लिए थे। आपको ज़रा भी ख्याल नहीं है मेरा? ऐसे कोई कैसे कह सकता है? उनैज़ा जुमार की बात सुनकर फौरन बोल पड़ी, जिस पर जुमार का कह बुलंद हुआ था। आप बहुत बुरे हैं। उनैज़ा ये कहते हुए बेड से उठने लगी थी कि जुमार ने उनैज़ा का बाजू जोर से पकड़ते हुए रोका। ऐसे कैसे जाने दूँ? हाँ, मेरी मॉर्निंग किस कहाँ है? भाई, मुझे भी तो अपनी मिसेस से थोड़ा रोमांस चाहिए ना। जुमार ने आंखों में शरारत आते हुए कहा, तो उनैज़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने आंखें सुकेड़ते हुए जुमार की तरफ देखा और फौरन आगे को झुकते हुए जुमार के गाल पर अपने लब रख दिए थे, जिस पर जुमार के हाथ की गिरफ्त उनैज़ा के बाजू पर नरम पड़ गई थी। उफ, ऐसी रोमांटिक बीवी मुझे कहाँ मिल सकती है? उनैज़ा मुस्कुराते हुए बेड से उतर गई थी और जुमार अपने दिल पर हाथ रखे बेड पर फिर से लेट गया था। शाम को शहरयार थके और बोझिल कदमों के साथ घर दाखिल हुआ था। शर्ट के अगले 2 बटन खुले हुए थे। चेहरे पर इंतहा की परेशानी थी। नवाज, माँ और डैड कहाँ हैं? शहरयार ने नवाज को देखकर कहा, जो अंदर वाले गेट के दरवाजे पर ही खड़ा था। मुर्तज़ा साहब स्टडी रूम में हैं और मैम का मुझे नहीं पता, आप मिस नाजिया से पूछें शहरयार साहब। नवाज ने वहीं हाथ बांधे सीधे खड़े शहरयार को कहा, जिस पर शहरयार नवाज की बात सुनकर खामोशी से अंदर चला गया था, और नवाज उसे हैरत से देख रहा था कि आज शहरयार ने उसे कुछ कहा क्यों नहीं साहब कहने पर। शहरयार आज शहनाज बेगम के पास जाने के बजाय सीधे मुर्तज़ा बेग के पास चला गया था। जब से शहनाज बेगम को होश आया था, शहरयार और जुमार की रूटीन थी कि वो ऑफिस से घर आकर पहले शहनाज बेगम के पास जाते थे। शहरयार स्टडी रूम में जाकर वहीं रुकी कुर्सी पर बैठ गया था। कुछ फासले पर मुर्तज़ा बेग किसी किताब को पढ़ने में मसरूफ थे। रूम में आहट पाकर मुर्तज़ा बेग ने किताब से नजरें हटाकर सामने रखी कुर्सी की तरफ देखा, जहां शहरयार किसी गहरी सोच में डूबा बैठा हुआ था। शहरयार, तुम आ गए हो और इतने खामोश क्यों हो? मुर्तज़ा बेग ने किताब बंद की और अपनी कुर्सी से उठकर शहरयार के पास रखी कुर्सी पर बैठ गए थे। कुछ नहीं डैड, बस थोड़ा थक गया हूँ।
भाई की कंपनी के काम भी देख रहा हूं ना, इसलिए। शहरयार ने अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए उसे थोड़ा दबाते हुए कहा। हाँ मुझे पता है, कुछ दिन तक आ जाएगा। वो भी कह रहा था कि तुम्हारी बर्थडे से पहले आ जाएगा। वैसे अच्छी बात है, वो दोनों जितना साथ वक्त गुजारेंगे उनके लिए अच्छा होगा। मुर्तजा बेग ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा। वो अब काफी हद तक मुतमईन थे कि जुमार की जिंदगी में जो उतार चढ़ाव था वो अब ठीक हो रहा था, और अब बेग मेंशन में भी सब नॉर्मल था। लेकिन मुर्तजा बेग इस बात से बेखबर थे कि जिस खुशियों के पीछे काले साए हों वो कभी देर तक नहीं रहती। डैड, आपसे एक बात पूछनी थी, शहरयार ने कुर्सी के पोस्ट से टेक लगाते हुए कहा। हाँ पूछो, मुर्तजा बेग ने कहा। डैड, ये फेरोज अली से आपकी क्या दुश्मनी है? जब से मैंने होश संभाला है, फेरोज अली के डर का साया हमेशा इस घर पर मुंडलाते हुए देखा है। शहरयार की बात सुनकर मुर्तजा बेग ने गहरी सांस ली। ये तो मुझे भी नहीं पता शहरयार। मैंने बहुत दफा कोशिश की कि पता करवा सकूं कि आखिर उसे हम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं नाकाम रहा। अगर देखा जाए तो बिजनेस के मामले में उसकी फील्ड अलग है और उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। फिर भी वो हमारे साथ कौन सी दुश्मनी निभा रहा है मुझे भी नहीं पता। मुर्तजा बेग ने टांग पर टांग रखते हुए कहा तो शहरयार ने हैरत से अपने डैड की तरफ देखा। तो डैड, आप उससे बात करें, पूछें कि आखिर वो चाहता क्या है, क्यों हमारे घर के लोगों के पीछे पड़ा है। जो चाहिए उसे दे दें, लेकिन उसे हमारे घर से दूर कर दें। शहरयार ने जिद होते हुए कहा। तो मुर्तजा बेग ने शहरयार की तरफ हैरत से देखा। आज से पहले मुर्तजा बेग ने शहरयार को कभी ऐसी बातें करते हुए नहीं देखा था। वो तो जुमार के बिल्कुल उलट था, बातूनी, हंसी मजाक करने वाला। लेकिन आज इस तरह की बातें करते हुए मुर्तजा बेग ने पहली बार शहरयार को देखा था। क्या हुआ है शहरयार, कोई बात तो हुई है? फेरोज अली ने कुछ कहा है? मुर्तजा बेग के लहजे में एकदम परेशानी आ गई थी। कुछ नहीं डैड, बस ऐसे ही कह दिया। मैं बस यही सोच रहा था कि भाई की लाइफ अभी ठीक हुई है और वो अब खुश है। भाभी ने भी सब कुछ भुलाकर भाई के साथ चल रहा है, तो अब कोई परेशानी ना आ जाए। उस दिन भी जबरान शाह मलिक बिसात के कत्ल को लेकर कुछ कह रहा था, बस मैं इसीलिए परेशान हूँ। शहरयार की बात मुकम्मल होते ही मुर्तजा बेग की परेशानी बढ़ गई थी। वो अपने बच्चों को अच्छे से जानते थे और वो ये भी जान गए थे कि शहरयार के साथ कुछ हुआ तो है। तुम फिक्र मत करो जुमार के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं कि तुम अपने भाई से कितनी मोहब्बत करते हो, तो तुम्हारी ये फिक्र जायज़ है, लेकिन तुम इस बात की परेशानी मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मुर्तजा बेग ने शहरयार को तो समझा दिया था, लेकिन वो खुद अंदर से बहुत बेचैन हो गए थे। ठीक है डैड, मैं फ्रेश हो जाऊं। शहरयार ये कहते हुए वहां से उड़ गया था। बाहर आते ही उसने गर्दन मोड़कर अंदर की तरफ देखा। काश डैड, आप जो कह रहे हैं वैसा ही हो। शहरयार ने गहरा सांस लिया और अपने कमरे की तरफ चला गया था। जुमार उनैज़ा को कोलालंपुर में सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग दिखाने के लिए ले गया था, जो वहां की कदीम बिल्डिंग थी। मुझे तो भूख लग गई है, उनैज़ा ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, तो जुमार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अभी तो तुमने पिज्जा खाया है, अभी फिर से भूख लग गई? जुमार की बात पर उनैज़ा ने आंखों को सकेटते हुए कहा। अच्छा अच्छा चलते हैं, मुझे ही कहीं खा मत जाना। जुमार ने हंसते हुए कहा और दोनों नज़दीकी रेस्टोरेंट में चले गए थे। जुमार हमेशा सूट में ही रहता था, लेकिन आज उसने कैजुअल ड्रेस पहना हुआ था। ब्लू कलर की जीन्स और ऊपर ऑफ वाइट कलर की शर्ट पहने। शर्ट के बाजुओं को कोहनियों तक किए जुमार की एक अलग सी पर्सनालिटी नुमायां हो रही थी। जुमार रेस्टोरेंट के बाहर खड़े अपना ऑर्डर ले रहा था जब उनैज़ा की नज़र सामने खड़ी 3 लड़कियों पर पड़ी, जो जुमार की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बात कर रही थी, जिनकी हुलिये से वो ब्रिटिश लग रही थी। उन तीनों को देखते हुए उनैज़ा ने अपने होंठों को काटते हुए जुमार की तरफ देखा और आगे बढ़कर जुमार के बाजू को थामते हुए दोबारा से उन लड़कियों की तरफ देखा। उनैज़ा भी उन लड़कियों की तरफ देख ही रही थी कि जुमार उनैज़ा के यूं अचानक उसके बाजू पकड़ने पर चौंक कर उनैज़ा की तरफ देखा और फिर उसकी नज़रों का तयन करते हुए उन लड़कियों की तरफ देखा। खूबसूरत है ना वो? जुमार की आवाज़ पर उनैज़ा ने गुस्से से जुमार को देखा। तो जाएं फिर उनके पास। उनैज़ा ने गुस्से से जुमार के बाजू से अपना हाथ अलग करते हुए कहा ही था कि जुमार का कहका बुलंद हुआ और उसने उनैज़ा के हाथ को पकड़ते हुए उसकी तरफ देखा। हाय मेरी जंगली बीवी जेलस हो रही है, बट डोंट वरी, तुम्हारा शोहर सिर्फ तुम्हारा ही है, वो तुम्हारे सिवा किसी को नहीं देखता। जुमार कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लेकिन सब तो आपकी तरफ देखते हैं ना, उनैज़ा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। अब इसमें मेरा क्या कसूर है मिसेस? अल्लाह ने मुझे बनाया ही ऐसा है कि कोई नज़र हटा ही नहीं पाता। जुमार फुल मूड में था उनैज़ा को तंग करने के। हम कल ही पाकिस्तान जा रहे हैं, मुझे अब और यहाँ नहीं रुकना, उनैज़ा ने कहा तो जुमार मुस्कुरा दिया। ओके मिसेस जुमार बेग,
हम चले जाएंगे, अभी 2 दिन बाकी हैं। चलो अब खा लो, जुमार ने कहा, तो जिस पर उनैजा ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। मुझे अब भूख नहीं है। उनैजा के जवाब पर जुमार ने उनैजा को प्यार से अपने साथ लगाते हुए उसकी तरफ देखा। बस ऐसे ही रहना मेरे साथ, मुझे किसी और का होने मत देना, हमेशा अपनी मोहब्बत से बांधे रखना मुझे। उनैजा ने जुमार की बात पर उसके हाथ पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर मस्बत में सर हिलाया था। अगले दिन शाम को ही शहरयार महरिश के घर के बाहर था। गाड़ी से निकलकर शहरयार ने घर में बैल दी, जिस पर फैरोज अली ने कैमरे से शहरयार को देखते हुए महरिश की तरफ देखा, जो फैरोज अली के पास ही बैठी हुई थी। तुमने शहरयार को बुलाया है क्या? महरिश जो फोन पर बिजी थी, उसने सर उठाकर कैमरे में देखा। हाँ, मैंने बुलाया है। महरिश की बात पर फैरोज अली ने हैरत से महरिश की तरफ देखा। लेकिन तुम तो इद्दत में हो। फैरोज अली ने महरिश को याद करवाया, जिस पर महरिश ने तंजिया मुस्कुराते हुए फैरोज अली की तरफ देखा। डैड, क्या आप नहीं चाहते कि मुर्तजा बेग से बदला ले? महरिश की बात पर फैरोज अली दिल ही दिल में खुश हो रहा था। डैड, अब आपके बदले के साथ मैं अपनी बेइज्जती का बदला भी लेना है। बेग फैमिली के साथ, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। आपको तो पता है कि हमारे पास आखिरी मोहरा क्या है, बस उसी का इस्तेमाल करने लगी हूँ। आपको मुझ पर भरोसा रखना होगा कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। महरिश की नफरत की शिद्दत को देखते हुए फैरोज अली ने महरिश के कंधे पर थपकी दी थी। मुझे तुम पर भरोसा है। फैरोज अली के चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट आ गई थी। आप शहरयार को लिविंग रूम में भेज दें। महरिश ये कहते हुए वहां से उठकर लिविंग रूम में चली गई थी। थोड़ी देर बाद ही शहरयार फैरोज अली के घर के लिविंग रूम में महरिश के सामने बैठा हुआ था। हाँ बोलो, जो तुम फोन पर कह रही थी, क्या सबूत है तुम्हारे पास? शहरयार ने बेचैनी से कहा, जिस पर महरिश शहरयार की तरफ देखी। लगता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी है। होनी भी चाहिए, और मैं मजीद तुम्हें इंतजार नहीं करवाऊंगी। महरिश कहते हुए अपनी जगह से उठी और लिविंग रूम में रखी टेबल के दराज को खोलते हुए उसमें से एक फाइल निकाली और चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट लाते हुए उसने वो फाइल शहरयार को थमा दी थी। शहरयार ने वो फाइल महरिश से पकड़ तो ली थी, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे खोल सके। एक गहरे सांस के साथ शहरयार ने अपने सामने खड़ी महरिश को देखा और फिर फाइल को खोला। फाइल को खोलते उसके अंदर रखे तमाम मवाद को देखते ही शहरयार के वजूद से जान ही निकल गई थी। वो जिस बात से डर रहा था वही हुआ था। उससे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो वो देख रहा है वो सच है। आंखों में नमी लिए शहरयार ने अपने चेहरे पर आई हल्की सी दाढ़ी पर हाथ फेरा और साथ ही फाइल को बंद कर दिया था। अगर इस पर भी यकीन नहीं है तो उसके अलावा भी और बहुत कुछ है दिखाने को। कहते हो तो दिखा देती हूँ। महरिश ये कहते हुए दोबारा अपनी जगह पे जाकर बैठ गई थी। क्या चाहिए तुम्हें? इतना तो मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई चाल है नहीं, तो तुम मुझे यूं इस तरह अकेले में नहीं बुलाते। शहरयार की बात सुनकर महरिश का कहका बुलंद हुआ। तुम भी अपने भाई की तरह कमाल की जहानत रखते हो, इतनी जल्दी जान लिया सब? महरिश की बात पर शहरयार दांत पीस कर रह गया था। ज्यादा बातें मत करो, मुझे बताओ कितना पैसा चाहिए तुम्हें अपनी जबान बंद रखने के लिए? शहरयार का जब्त जवाब दे रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मुझे पैसा चाहिए? तुम्हें क्या लगता है मैं पैसों की भूखी हूँ? शहरयार ने महरिश ने अपने घर की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो क्या चाहिए तुम्हें? शहरयार की बात पर महरिश ने जो जवाब दिया उसे सुनते ही शहरयार अपनी जगह से गुस्से से उठ खड़ा हुआ था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारी शर्त मानने से बेहतर है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूं। शहरयार ये कहते हुए महरिश की तरफ बढ़ा। ना ना ना, ऐसी हरकत भी मत करना। हमारे घर में हर तरफ कैमरे लगे हैं, नुकसान तुम्हारा ही होगा। अगर तुम जोश से नहीं होश से सोचो तो जो तुमने देखा है उसके बदले तो ये कुछ भी नहीं है। अब तुम अपनी फैमिली के लिए इतना भी नहीं कर सकते? कितनी अफसोस की बात है। महरिश बहुत मुतमईन होकर बात कर रही थी। वो जानती थी कि जुमार और शहरयार अपनी फैमिली को बचाने के लिए हर हद से गुजर सकते थे। महरिश की बात सुनकर शहरयार जो पहले गुस्से में था उसने महरिश की तरफ देखा। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। शहरयार अब खुद को बेबस महसूस कर रहा था। कल शाम तक का वक्त है। अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो तुम्हारी फैमिली की अगली सुबह कैसी होगी ये तुम अच्छे से जानते हो। महरिश ये कहते हुए अपनी जगह से उठ गई थी, जैसे वो अब शहरयार को जाने का कह रही हो, जिस पर शहरयार ने एक जहर आलूदा नजर महरिश पर डालते हुए वहां से उठकर चला गया था। शहरयार सारी रात सो नहीं सका था। उसके लिए फैसला करना मुश्किल था। एक तरफ उसकी फैमिली और उसके अपने कुछ ख्वाब थे और दूसरी तरफ महरिश की रखी गई शर्त। अगर वो महरिश की बात नहीं मानता तो उसकी फैमिली बिखर जाती। इसी कश्मकश में कब सुबह हुई शहरयार को पता ही नहीं चला।
اس کے کانوں میں جب باہر سے آتی آوازیں پڑیں تو اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی گھڑی پر ٹائم دیکھا تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے شہریار بیڈ سے اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر شہریار جیسے ہی باہر آیا، سامنے ٹی وی لاؤنج پہ بیٹھے زمار اور انیزا کو دیکھ کر وہ وہیں رک گیا تھا۔ زمار صبح 7 بجے پاکستان پہنچ گیا تھا۔ انیزا کی بے حد ضد کرنے پر وہ جلدی آنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ زمار اور انیزا ٹی وی لاؤنج پہ بیٹھے چہرے پر مسکراہٹ لائے شہناز بیگم اور مرتضی بیگ سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ سب دیکھتے ہی شہریار نے ایک لمحے میں سوچ لیا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ بھائی آپ کب آئے؟ شہریار نے ٹی وی لاؤنج میں آتے ہی کہا۔ بس آج صبح ہی۔ تم نے اپنا حال کیا بنایا ہوا ہے؟ زمار نے شہریار کی حالت دیکھتے ہوئے کہا، جس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ ہی اداسی تھی۔ بھائی ایک ساتھ 2 کمپنی کو دیکھ رہا ہوں، یہ حال تو ہونا ہی ہے نا۔ اب آپ آ گئے ہیں تو اپنی کمپنی کو خود سنبھال لیں۔ شہریار نے بڑی مہارت کے ساتھ سب چھپا لیا تھا۔ ہاں میں اب آ گیا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زمار کی بات پر شہریار نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ کاش بھائی سب ٹھیک ہو پاتا، شہریار نے دل میں سوچا۔ شہریار ویسے بھی کل تمہاری برتھ ڈے ہے تو ہم نے سوچا کہ تمہاری برتھ ڈے سے پہلے آ جائے، انیزا نے شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر شہریار نے شاکڈ ہوتے ہوئے سب کی طرف دیکھا۔ ہاں میری تو کل برتھ ڈے ہے اور مجھے یاد بھی نہیں ہے۔ شہریار نے ساتھ ہی گہرا سانس لیا۔ اس بار میں تمہاری برتھ ڈے کی ساری تیاری کروں گی، دیکھنا تمہیں تمہاری یہ برتھ ڈے یاد رہے گی، انیزا نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا تو جواب میں سب مسکرا دیے تھے۔ اگلے دن زمار آفس چلا گیا تھا، شہریار گھر پر ہی تھا۔ انیزا مس نازیہ اور نواز کے ساتھ مل کر شہریار کی برتھ ڈے کے انتظامات دیکھ رہی تھی۔ شہناز بیگم بھی انیزا کا برابر ساتھ دے رہی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد شہناز بیگم ایک لمبے عرصے کے بعد شہریار کی برتھ ڈے کو دیکھ رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، شام ہونے والی تھی۔ شہریار اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ شہریار کہاں جا رہے ہو؟ سب مہمان آنے والے ہیں، انیزا نے شہریار کو باہر جاتے دیکھ کر کہا۔ بھابھی بس تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، شہریار نے سنجیدگی سے کہا اور باہر چلا گیا۔ شام ہوتے ہی مرتضی بیگ نے جن لوگوں کو انوائٹ کیا تھا وہ سب آنا شروع ہو گئے تھے، جس میں انیزا کے بھائی اور بھابھی کے ساتھ ازلان بھی شامل تھا۔ مرتضی بیگ نے جبران شاہ کو بھی انوائٹ کر لیا تھا۔ سب مہمان آ چکے تھے، 8 بجنے والے تھے۔ برتھ ڈے کا سارا انتظام گارڈن میں کیا ہوا تھا۔ سب کی نظریں گیٹ پر تھیں اور شہریار کا انتظار ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں شہریار کی گاڑی گھر کے گیٹ پر آ کر رکی۔ لو آ گیا ہمارا مہمان خصوصی، کتنا انتظار کرواتا ہے یہ لڑکا۔ زمار یہ کہتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس کے قدم وہیں رک گئے تھے جب اس نے شہریار کے ساتھ گاڑی سے اترتی ہوئی مہرش کو دیکھا تھا۔ جہاں زمار شاکڈ کھڑا تھا وہاں بیگ فیملی کا ہر فرد چہرے پر حیرت لیے شہریار اور مہرش کو دیکھ رہا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ مرتضی بیگ نے شہریار کو دیکھتے ہوئے کہا جو گارڈن میں آ چکا تھا۔ ڈیڈ وہ شہریار کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کچھ بول سکے۔ بولو شہریار، یہ یہاں تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ مرتضی بیگ کی آواز بلند ہوئی۔ ڈیڈ یہ میری بیوی ہے، ہم نکاح کر چکے ہیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو شہریار؟ مرتضی بیگ شہریار کی بات سن کر اونچی آواز میں چل رہا ہے۔ شہریار کا مہرش سے نکاح کرنا جہاں بیگ فیملی کو شاکڈ کر گیا تھا، وہاں برتھ ڈے پارٹی میں آئے سب مہمان بھی شاک تھے۔ درخشا نے انیزا کی طرف دیکھا جو خود اس سب کو ایک خوفناک خواب سمجھ رہی تھی، اور جبران شاہ جو مہرش اور زمار کے قصے سن چکا تھا۔ شہریار کا یوں مہرش سے نکاح کرنا اسے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ڈیڈ۔ شہریار کی آنکھوں میں بے بسی تھی لیکن وہ خود میں حوصلہ کرتے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ نکاح سے پہلے ہی مہرش نے شہریار کے سامنے ایک اور شرط رکھ دی تھی کہ وہ آج ہی بیگ مینشن جائے گی اور وہ سب گھر والوں کے سامنے اسے تحفظ دے گا، اور شہریار کر بھی یہی رہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو یا نہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ عورت میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ مرتضی بیگ غصے سے لال پڑ رہے تھے۔ ڈیڈ یہ کوئی عورت نہیں، میری بیوی ہے، شہریار نے زچ ہو کر کہا تو مرتضی بیگ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ بکواس کر رہے ہو آگے سے، مرتضی بیگ نے چلاتے ہوئے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا۔ زمار جو خود شہریار کی اس حرکت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیا ہوا کہ شہریار نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، مرتضی بیگ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے روکا۔ نہیں ڈیڈ، زمار نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے مرتضی بیگ کو کہا، جس پر مرتضی بیگ غصے سے اپنی ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے رہ گئے تھے۔ سب مہمان ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ زمار غصے میں نہیں تھا لیکن اسے شہریار کی اس حرکت پر افسوس ہو رہا تھا۔ زمار کے روکنے پر مرتضی بیگ نے شہریار کی طرف سے اپنی پشت کر لی تھی۔
जिस पर शहरयार की आंखों में नमी आ गई थी। जिंदगी में पहली बार मुर्तजा बेग शहरयार पर यूं चिल्लाई थी। उसने बेबसी से मुर्तजा बेग को देखते हुए अपनी माँ की तरफ देखा, जो आंखों में आंसू लिए उनैजा का सहारा लिए खड़ी थी। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा मुतमईन था वो महरिश थी, जो सीने पर हाथ बांधे सब कुछ एंजॉय कर रही थी। शहरयार, तुम अपने कमरे में जाओ। जुमार की बात सुनकर शहरयार जो अपनी माँ की तरफ देख रहा था, उसने जुमार की तरफ देखा, जिसने शहरयार को इशारे से महरिश को अंदर ले जाने का कहा था। वो जानता था कि महरिश किस नेचर की है, और अगर उसे इस वक्त घर से निकाल दिया तो पूरे मीडिया को कॉल करके बुलाकर ये हमदर्दी हासिल करेगी। जुमार की बात पर जहां शहरयार ने मस्बत में सर हिलाया था, वहां महरिश एकदम चौंक गई थी। बस इतना ही था? मैंने तो सोचा था कि बहुत बड़ा तमाशा लगेगा, लेकिन ये जुमार ने तो बात ही ठंडी कर दी। महरिश दिल में ही सोचते हुए अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि शहरयार महरिश का हाथ पकड़ते हुए उसे खींचने के अंदाज में साथ लेता हुआ अंदर की तरफ चला गया था। जुमार ने गहरी सांस लेते हुए मुड़कर बाकी के मेहमानों की तरफ देखा। उनैजा जो शौक में खड़ी थी, उसकी आंखों में बहुत से सवाल थे जिन्हें जुमार जान गया था, लेकिन उसे सब ठीक करना था। ये वक्त जोश से नहीं, होश से काम लेने का था। एक सेकंड में बेग मेंशन की खुशियां कहीं दूर अंधेरे में चली गई थी। जुमार फौरन शहनाज बेगम की तरफ आया। माँ, आप ठीक तो है ना? जुमार ने शहनाज बेगम का हाथ पकड़ते हुए जैसे कहा तो उनैजा भी होश की दुनिया में वापस आई। उसकी नजर जुमार के चेहरे पर पड़ी, जिस पर परेशानी साफ जाहिर थी। आप बाकी सबको देख लें, मैं माँ को अंदर ले जाती हूँ। उनैजा ने फौरन खुद को संभालते हुए कहा, प्लीज सब संभाल लेना। जुमार की कही एक लाइन में उनैजा ने न जाने क्या महसूस कर लिया था। उनैजा इस वक्त जुमार के साथ साथ बेग फैमिली के सारे लोगों का दुख जान गई थी। उसने मस्बत में सर हिलाया। माँ चले अंदर, भाभी भी आ जाएंगी। उनैजा ने दोनों को कहा तो दरख्शा ने हसीब से परी को पकड़ते हुए उनैजा के साथ अंदर चली गई थी। जुमार ने सब मेहमानों से मुआवजत कर ली थी। मुर्तजा बेग अपने कमरे में चले गए थे और जुमार मेहमानों को भेजकर मुर्तजा बेग के पीछे उनके कमरे में चला गया था। अजलान और हसीब जुमार के साथ घर के अंदर चले गए थे, लेकिन जिब्रान शाह वहीं गार्डन में था। उसने जो कुछ देखा था उससे वो सब हजम नहीं हो रहा था। वो शहरयार को अच्छे से जानता था। जुमार अपनी फैमिली के लिए जितना हसास था, शहरयार उससे 2 कदम आगे था। इसलिए शहरयार को आसानी से ट्रैप किया जा सकता था। कुछ सोचते हुए जिब्रान शाह ने अपने कोट की पॉकेट से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल मिला दी थी। बेग मेंशन में एक बार फिर से खामोशी छा गई थी। हर कोई सदमे में था। शहनाज बेगम की तबीयत बिगड़ रही थी। उनैजा ने शहनाज बेगम को मेडिसिन देकर सुला दिया था। ड्राइंग रूम में दरख्शान और हसीब अजलान के साथ बैठे थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रही थी कि ये बेग मेंशन में चल क्या रहा है। वो तो जब भी उनैजा को कॉल करते तो उसे वो हमेशा खुश और मुतमईन मिलती थी। दरख्शान अपनी सोचों में ही सब सोच रही थी कि उनैजा ड्राइंग रूम में आए। उसे अब समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने भाई और भाभी को क्या बताए कि ये महरिश कौन थी और शहरयार ने ऐसा क्यों किया। हाथों को मसलते हुए उनैजा दरख्शान के पास आकर बैठ गई थी। आई एम सॉरी भाभी, आपको ये सब देखना पड़ा। हमें भी नहीं पता था कि शहरयार यूं निकाह करके आ जाएगा। उनैजा ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा। उनैजा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम तो यहाँ ठीक हो ना? दरख्शां को उनैजा की फिक्र खाई जा रही थी। जी भाभी, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? उनैजा ने बात करते हुए हसीब और अजलान की तरफ देखा, जो खामोशी इख्तियार किए हुए थे। भाभी, मैं सॉरी इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। तो उनैजा के अंदर जिस बात को कहने की हिम्मत नहीं थी, उसे अजलान ने समझ लिया था। आप ही और भाई, हमें अब चलना चाहिए। उनैजा ठीक कह रही है कि ये सब होने के बाद हमारा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। मुर्तज़ा अंकल अपने घर के मसले खुद हल कर सकते हैं। अजलान ये कहकर सोफे से उठ खड़ा हुआ था। अजलान की बात सुनकर उनैजा ने आंखों के इशारे से अजलान को शुक्रिया कहा। लेकिन मैं उनैजा को इस माहौल में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? दरख्शा ने बेचैनी से कहा। दरख्शा, वो अब शादीशुदा है, उससे अपने घर के मामले को खुद देखने दो। वैसे भी जुमार है, वो समझदार है, इसलिए हमें अब चलना चाहिए। हसीब भी बात को समझ गया था, इसलिए उसने दरख्शा को जाने का कहा। अब दरख्शा के पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसने परेशानी में उनैजा को गले लगाया और कॉल करने का कहकर वहां से चली गई थी। अपने भाई और भाभी को गेट तक छोड़ने के बाद उनैजा जैसे घर के अंदर जाने लगी, गार्डन में जिब्रान शाह को देखते हुए उसके कदम वहीं रुक गए थे। जिब्रान साहब, आप यहाँ हैं? उनैजा की आवाज पर जिब्रान शाह, जो कान के साथ मोबाइल लगाए किसी से बात कर रहा था,
उसने फौरन कॉल को बंद कर दिया था। जी वो मैं बस मुर्तज़ा अंकल से मिलना चाहता था, इसलिए रुक गया। जिब्रान शाह ने रुकने की वजह बताई। मेरे ख्याल से वो उस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी से मिल लें, वो बहुत गुस्से में है। उन्नेज़ा ने रुकते रुकते हुई बात की। सही कहा। जिब्रान शाह ये कहकर चुप कर गया था। कुछ सेकंड के लिए दोनों के दरमियान खामोशी छा गई थी। आपको किसी किस्म की ज़रूरत तो नहीं है? जिब्रान शाह ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, जिस पर उन्नेज़ा चौंक गई थी। नहीं। उन्नेज़ा ने मुख्तसर सा जवाब दिया। ठीक है, मैं अब चला जाता हूँ। मैं मुर्तज़ा अंकल से फ़ोन पर रब्ता कर लूँगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। जिब्रान शाह ये कहते हुए गेट की तरफ चला गया था। जिब्रान शाह के मुंह से अपने लिए फिक्रमंदी के अल्फाज सुनकर उन्नेज़ा को थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन वो उससे अपना वहम समझते हुए सर को झटकाते हुए अंदर की तरफ चली गई थी। मुर्तज़ा बेग गुस्से में कमरे में चक्कर पर चक्कर लगा रहे थे जब जुमार कमरे में आया। डैड। जुमार की आवाज़ सुनकर मुर्तज़ा बेग ने फौरन पलट कर उसकी तरफ देखा। देखा तुमने क्या कर दिया है शहरियार ने? तुम दोनों ने तो सोच लिया है कि अपने माँ बाप को मार कर ही दम लोगे। पहले तुम थे और अब वो नवाज़ादा तो निकाह करके आ गया है। मुर्तज़ा बेग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि शहरियार ऐसी हरकत कर सकता है। डैड प्लीज़ खुद को संभालें। आप इतना गुस्सा करेंगे तो शहरियार हमसे बदजन हो जाएगा। वो अपने फैसले ले सकता है, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। कानून भी उसका साथ देगा अगर हमने उस पर सख्ती की तो। और मुझे पूरा यकीन है कि महरिश की कोई चाल है, नहीं तो शहरियार ऐसे कभी नहीं कर सकता। हमें ये मालूम करना है कि वो यहाँ किस मकसद से आई है। जुमार ने तहम्मुल से बात करते हुए मुर्तज़ा बेग को कहा, जिस पर मुर्तज़ा बेग अपना सर पकड़कर बैठ गए थे। महरिश ही क्यों, किसी और लड़की को ले आता मैं खुशी खुशी कबूल कर लेता। मेरा बेटा है वो, लेकिन वो नहीं जानता कि उसने किस मुसीबत को अपने गले डाल लिया है। मुर्तज़ा बेग अब बेबसी से बोल रहे थे। डैड सब ठीक हो जाएगा, आप बस शहरियार को कुछ मत कहें। सब खामोश रहें। मैरिज को ज़रा भी नहीं लगना चाहिए कि उसके आने से हमारे घर का माहौल ख़राब हुआ है। जुमार ने मुर्तज़ा बेग का हाथ पकड़ते हुए इल्तिजाई नज़रों से अपने डैड की तरफ देखा। तुम्हारी माँ कैसी है अब, कहाँ है वो? मुर्तज़ा बेग का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ तो उन्होंने कमरे में नज़र डालते हुए कहा, वो मेरे कमरे में हैं, उन्नेज़ा उनके पास है, मेडिसिन लेकर सो रही हैं। जुमार के बताने पर मुर्तज़ा बेग ने परेशानी में अपने माथे को मसला। जुमार भी खुद परेशान था। वजह उसकी महरिश भी थी और शहरियार भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि महरिश ने ऐसा क्या कर दिया आखिर कि उसने अपनी इद्दत का भी ख्याल नहीं किया और शहरियार से निकाह कर लिया था। क्या महरिश का मलिक बिसात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था? क्या वो मियाँ बीवी की तरह नहीं रहे? अगर महरिश और मलिक बिसात का कोई ताल्लुक़ नहीं रहा होगा तभी उसने ये कदम उठाया होगा निकाह का। लेकिन वो तो उसकी मोहब्बत था। फिर जुमार को ये सब सवालों के जवाब चाहिए थे जो उसे सिर्फ महरिश दे सकती थी। शहरियार महरिश को कमरे में लाते हुए झटके से महरिश को कमरे में दाखिल किया और उसका हाथ छोड़ा। कमरे से बाहर मत निकलना जब तक मैं तुम्हें ना कह दूं। शहरियार ने गुस्से से कहा तो साथ ही महरिश का कह निकला, तुम मेरे साथ रिवायती शौहर की तरह पेश नहीं आ सकते और ना ही मुझ पर अपना हुक्म जमा सकते हो, समझे तुम? महरिश के यूं बोलने पर शहरियार ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बंद की। मुझे अच्छे से पता है कि हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट शादी है और मुझे कोई शौक भी नहीं है तुम जैसी लड़की पर अपना हक इस्तेमाल करूं, क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। मैंने तुम्हारी बात मान ली इसलिए कि मुझे अपने घर वाले अजीज थे, लेकिन ये मत भूलना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं सकता। अब तुम अपने घर में नहीं हो, मेरे घर में हो, समझी? शहरियार के यूं बदलते लहजे को देखकर महरिश दांत पीस कर रह गई थी। शहरियार ने गुस्से से दरवाजे को बंद किया और बाहर चला गया था। जुमार जैसे मुर्तज़ा बेग के कमरे से निकलकर बाहर आया तो उसे ड्राइंग रूम में उन्नेज़ा बैठी नजर आई, जो अपने दोनों कोहनियों को टांगों पर रखे और अपने हाथों में अपना चेहरा थामे गहरी सोच में डूबी बैठी थी। जुमार ने उन्नेज़ा को देखते ही अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस ली और ड्राइंग रूम के अंदर आ गया था। तुम अकेली यहाँ बैठी हो? जुमार उन्नेज़ा के पास बैठते हुए उसके कंधों पर अपना बाजू फैलाते हुए उससे अपने करीब करते हुए बोला। बस ऐसे ही, उन्नेज़ा मुख्तसर सा जवाब देकर चुप कर गई थी। क्या सोच रही हो, मुझे नहीं बताओगी क्या? जुमार को जो बात तंग कर रही थी, परेशान कर रही थी, वो जानना चाह रहा था कि उन्नेज़ा क्या वाकई में ही वो ये सब सोच रही थी। जुमार की बात सुनकर उन्नेज़ा पहली थोड़ी देर खामोश रही और जुमार उसके चेहरे की तरफ देखते हुए उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। उन्नेज़ा ने अपना रुख जुमार की तरफ करते हुए उसकी आंखों में देखा। जुमार, ये सब कैसे ठीक होगा? मैरिज क्यों आई है यहाँ? क्या वो आपको मुझसे? उन्नेज़ा को वो सारे खदशात जो उसके दिमाग में चल रहे थे जुमार के यूं पूछने पर वो बोल पड़ी थी।
लेकिन जैसे ही उसने अलग होने की बात की तो जुमार ने फौरन उनैजा के होंठों पर अपना हाथ रख दिया था। ऐसा मुमकिन नहीं है उनैजा, और ऐसा बोलना भी मत। मेरे दिल पर हाथ रखकर महसूस करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस औरत की बातों में आकर तुमसे अलग हो जाऊंगा? जुमार ने उनैजा का हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहा, मेरे दिल की हर धड़कन इस बात की तुम्हें गवाही देगी कि वो तुमसे कभी गद्दारी नहीं करेगा। उनैजा, तुम इस बात को लेकर परेशान मत होना। मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है, शहरयार को हमारी ज़रूरत है, माँ को हमारी ज़रूरत है। ऐसी छोटी छोटी बातों से हमारे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ओके? जुमार उनैजा का हाथ पकड़े अपने सीने पर रखे कह रहा था, और उनैजा आंखों में नमी लिए जुमार की तरफ देख रही थी, जिसकी आंखों में उदासी और परेशानी साफ थी, लेकिन वो उसे अपने सामने नहीं ला रहा था, और इस हालत में वो उनैजा को समझा रहा था। मैं आपके साथ हूँ जुमार। आप मुझे अपने साथ अपने साए की तरह पाएंगे। मुझे अपनी मोहब्बत पर, आपकी मोहब्बत पर यकीन है। आपने ठीक कहा कि ये छोटी छोटी बातें हमारे रिश्ते को, हमारे घर को ख़राब नहीं कर सकती। जहाँ आपका दिल आपकी मोहब्बत की गवाही दे रहा है, वहाँ मेरी हर सांस आपकी मोहब्बत पर निछावर है। उनैजा ने जुमार के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तो जुमार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। आज मिस्टर शौहर नहीं कहोगी क्या? जुमार उनैजा के मुंह से अपना नाम और अपने लिए मोहब्बत के पुरखुलूस जज्बात को सुनकर अपनी किस्मत पर रश कर रहा था। आप भी ना, ऐसी सूरत हाल में भी आपको मजाक सूझ रहा है? उनैजा ने फौरन अपना हाथ पीछे किया था। अच्छा मिसेस, अब गुस्सा तो मत करो। जुमार ने उनैजा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, शहरयार कहाँ है? आपको शहरयार से बात करनी चाहिए। वो मुझे बहुत परेशान लग रहा था। उनैजा ने जुमार के बाजुओं पर अपने हाथ रखते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, मैं बात करता हूँ उससे, लेकिन अभी मुझे अपनी मिसेस के पास रहना है। जुमार ये कहते हुए उनैजा के बालों पर प्यार से बोसा दिया। उनैजा की कुर्बत पाकर जुमार, जो पहले इस सब सूरत हाल में परेशान था, अब अपने आप को पुरसुकून महसूस कर रहा था। सुबह होते ही महरिश अपने कमरे से बाहर आ गई थी। शहरयार सारी रात अपने कमरे में नहीं गया था। महरिश को जब भूख ने तंग किया तो वो अपने कमरे से बाहर आ गई थी। किचन की तरफ जाते हुए उसकी नज़र जब ड्राइंग रूम की तरफ गई तो उसके कदम वहीं रुक गए थे। जब उसने जुमार की बाहों में उनैजा को सोते हुए देखा, जो रात को वहीं एक दूसरे से बातें करते सोफे पर ही सो गए थे। दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर महरिश गुस्से से तिलमिला उठी थी। अपने पांव जमीन पर पटकती वो किचन की तरफ चली गई थी। किचन में जाते ही उसने पानी का गिलास अपने होंठों से लगाया था। मेरा इतना कुछ करने पर, इतना बड़ा स्टेप लेने पर भी इन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। मैं ऐसे अपनी हार नहीं मान सकती, बिल्कुल नहीं। मैरिज जो कुछ खाने की नीयत से कमरे से बाहर निकली थी, अब उसकी भूख मिट गई थी। हाथ में पानी का गिलास पकड़े दोबारा शहरयार के कमरे की तरफ चली गई थी। जुमार की आंख खुली तो उसने अपने बाजू पर सर रखे सोई हुई उनैजा को देखा। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसने उनैजा की गालों को नरमी से छुआ, जिस पर उनैजा ने हल्की सी मूवमेंट की और साथ ही अपनी आंखें खोल दी। उठ जाओ मिसेस, अब क्या ऐसे ही सोते रहना है? मुझे तो लगता है कि तुम्हें तकिए से ज्यादा सोने के लिए मेरे कंधे की जरूरत पड़ती है। जुमार की बात पर उनैजा ने आंखें मलते हुए जुमार की तरफ देखा। आपको प्रॉब्लम क्या है? उनैजा ने अपना दुपट्टा ठीक करते हुए कहा, तो जुमार हंस पड़ा। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम मेरी आदत बिगाड़ रही हो। मुझे भी अब ऐसे नींद नहीं आएगी जब तक तुम मेरी बाहों में नहीं होगी। जुमार ने उनैजा के दोनों गालों को पकड़ते हुए कहा। उफ छोड़ें, दर्द हो रहा है। उनैजा ने आंखें मीच ली थी। मेरी नाजुक बीवी। जुमार ने कहते हुए उनैजा के दाएं गाल पर अपने लब रख दिए थे। आपका रोमांस खत्म हो गया हो तो मैं माँ के पास चली जाऊं? वो उठ गई होंगी। उनैजा ने जुमार की तरफ देखा। जी जी जरूर, जुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, और उनैजा वहां से उठकर शहनाज बेगम के पास चली गई थी। जुमार ड्राइंग रूम से उठकर घर से बाहर लॉन में आया तो उसे सामने लॉन में रखी कुर्सी पर शहरयार बैठा नजर आया, जो अपनी टांगे दूसरी कुर्सी पर रखे अपनी पुश्त कुर्सी की बैग से लगाए आंखें बंद किए बैठा था। कपड़े वही रात वाले ही पहने हुए थे। शहरयार की यह हालत देखकर जुमार का दिल तड़प उठा था। शहरयार घर का लाडला था। उसे कभी भी अपने कमरे के अलावा कहीं नींद नहीं आती थी, और आज उसने सारी रात इस लॉन में गुजार दी थी। शहरयार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जुमार ने शहरयार के कंधे पर हाथ रखते हुए जैसे कहा। शहरयार ने फौरन आंखें खोलकर जुमार को देखते हुए सीधा होकर बैठ गया था। भाई आप? शहरयार ने आंखें मसलते हुए कहा। हाँ मैं। तुमने सारी रात यहाँ गुजारी है, तुम अपने कमरे में क्यों नहीं गए? जुमार दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए शहरयार की तरफ रुख करते बोला। बस ऐसे ही भाई, घबराहट हो रही थी इसलिए यहाँ चला आया। शहरयार बात करते हुए जुमार से आंखें नहीं मिला पा रहा था। शहरयार, मेरी तरफ देखकर बात करो।
کیوں خود کو ایک مجرم کی طرح شو کروا رہے ہو؟ ایسا کیا کر دیا ہے تم نے؟ تمہارے یوں باہر رات گزارنے سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ مہرش نے تمہیں کسی بات پر بلیک میل کر کے یہ سب کیا ہے۔ مجھے بتاؤ وہ بات کیا ہے؟ زمار نے آگے بڑھ کر شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے ہی کہا، شہریار نے چونک کر زمار کی طرف دیکھا۔ بھائی کو کیسے پتہ چلا کہ اس نے مجھے بلیک میل کیا تھا؟ شہریار زمار کی طرف دیکھ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا۔ بولو شہریار، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ زمار کے دوبارہ بولنے پر شہریار نے پھر سے سر جھکا لیا تھا۔ بھائی، میں نے ڈیڈ کو ناراض کر دیا ہے، ماں کی طبیعت بھی خراب ہو گئی ہے، لیکن میں کیا کرتا؟ اپنی فیملی کو برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا، شہریار نے جھکے سر کے ساتھ کہا۔ لیکن شہریار، ایسا کیا کیا ہے مہرش نے؟ کیا کہہ دیا کہ تم اس سے نکاح کرنے پر آ گئے تھے؟ مجھے تو بتاتے، میں سب ہینڈل کر لیتا۔ زمار نے شہریار کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، جس پر شہریار نے گہری سانس لی۔ آپ کو ہی تو نہیں بتا سکتا بھائی، مجھے معاف کر دینا، شاید میں نے غلط کر دیا، لیکن جو بھی کیا مجھے یہی بہتر لگا۔ شہریار سر جھکائے خاموشی سے سوچ رہا تھا۔ شہریار، میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تم خاموش ہو۔ اچھا چلو چھوڑو یہ سب باتیں، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اگر تم مہرش کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے تو اس کو گیسٹ روم میں شفٹ کر دو۔ باقی ڈیڈ کی فکر مت کرو، میں نے انہیں سمجھا دیا تھا۔ رات کو وہ غصے میں تھے اس لیے سب بول گئے تھے، لیکن اب وہ تم سے ناراض نہیں ہیں۔ اب جاؤ خود کا حلیہ ٹھیک کرو، باقی میں پتہ کرواتا ہوں کہ یہ مہرش چاہتی کیا ہے۔ زمار نے جیسے اپنی بات مکمل کی، شہریار جو خاموشی سے سن رہا تھا، زمار کی آخری بات سن کر اس نے فوراً ڈرتے ہوئے زمار کی طرف دیکھا۔ نہیں بھائی، آپ کچھ معلوم نہیں کروائیں گے پلیز؟ زمار شہریار کو خوفزدہ دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ بولیں بھائی، وعدہ کریں آپ کہ آپ کچھ پتہ نہیں کروائیں گے؟ شہریار نے زمار کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جس پر زمار حیرت سے شہریار کی طرف دیکھا۔ اوکے اوکے ریلیکس، میں کچھ پتہ نہیں کرواؤں گا۔ زمار نے شہریار کی حالت دیکھتے ہوئے حامی بھر لی تھی، لیکن اس کی بے چینی اور تجسس میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تھینکس بھائی، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ شہریار یہ کہہ کر اندر چلا گیا تھا۔ اتنے میں گھر کا گیٹ کھلا اور فیروز علی کے گھر کا گارڈ اندر آیا، جس کے ہاتھ مہرش کا سامان تھا جو اس نے گھر کال کر کے منگوایا تھا۔ مرتضی بیگ کے گارڈ نے اس سے وہ سامان پکڑا اور فیروز علی کا گارڈ واپس چلا گیا تھا۔ زمار یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وسیم، یہ سامان مس نازیہ کو کہہ کے گیسٹ روم میں رکھوا دو، اور مس نازیہ کو سختی سے سمجھا دینا کہ مہرش گیسٹ روم میں ہی رکے، وہ شہریار کے کمرے میں نہ جائے۔ زمار یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ گارڈ نے جا کر مس نازیہ کو مہرش کا سامان دے دیا تھا اور ساتھ ہی زمار کا میسج بھی۔ مس نازیہ مہرش کا سامان لیے گیسٹ روم کی طرف جا رہی تھی کہ اسے راستے میں مہرش مل گئی، جسے گارڈ نے کال کر دی تھی کہ وہ سامان چھوڑ آیا ہے۔ یہ میرا سامان ہے نا، لاؤ میں خود لے جاتی ہوں کمرے میں۔ مہرش نے مس نازیہ کے ہاتھ سے اپنے دونوں سامان کے پیک پکڑتے ہوئے کہا، جس پر مس نازیہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے تھے۔ میم، وہ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ کا سامان گیسٹ روم میں چھوڑا اور آپ شہریار صاحب کے کمرے میں نہیں رہ سکتے۔ مس نازیہ نے بھی پر اعتماد ہو کر کہا تھا۔ وہ بھی بیگ مینشن کی پرانی ملازمہ تھی۔ گھر میں جو کچھ ہوا، گھر کے افراد کے ساتھ باقی کے سارے ملازمین بھی خفا تھے۔ تمہاری ہمت کیسے مجھے یہ کہنے کی کہ میں یہاں کی اب بہو ہوں، سمجھی؟ مہرش نے کہتے ہوئے جیسے ہی دوبارہ اپنے بیگ پر ہاتھ رکھا، کانوں میں پڑتی آواز سن کر اس کے ہاتھ وہیں رک گئے تھے۔ میں نے اسے کہا ہے، تمہیں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ مہرش نے آواز کی سمت دیکھا تو اس کی دائیں جانب زمار کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ مس نازیہ، آپ یہ سامان گیسٹ روم میں چھوڑ کر آ جائیں، کیونکہ گیسٹ تو گیسٹ روم میں ہی رکیں گے، ان کے گھر میں جگہ تھوڑی دیتے ہیں۔ زمار کی بات پر جہاں مس نازیہ مثبت میں سر ہلاتے ہوئے مہرش کا سامان گیسٹ روم کی طرف لے گئی تھی، وہیں مہرش نے غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کی تھی۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ کیوں آئی ہو ہماری زندگی میں؟ زمار دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا مہرش کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تمہیں نہیں پتا زمار کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ مہرش نے ڈٹائی سے کہا۔ دھوکہ تم نے دیا تھا مجھے، محبت تم کسی اور سے کرتی تھی، تو اب تمہیں کیا مسئلہ ہے مجھ سے، میری فیملی سے؟ میں تو تمہارے راستے سے ہٹ گیا تھا۔ زمار انتہائی دھیمے اور نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ یہی تو بات ہے زمار، کہ تم راستے سے ہٹ گئے تھے۔ مانا کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا، لیکن میں نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ تم جب اکیلے تھے، تمہیں سہارے کی ضرورت تھی، تب میں تمہارا سہارا بنی، تمہیں حوصلہ دیا۔ لیکن تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ جب مجھے ضرورت پڑی تو میں تمہارے آگے بھیک مانگی کہ میری مدد کرو۔ ملک بساط ایک جانور ہے تو تم نے مجھے دھتکار دیا۔ بس یہ سب اسی کا نتیجہ ہے، مہرش نے لفظوں کو جباتے ہوئے کہا، جس پر زمار نے گہرا سانس لے کر اپنے ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے کوئی تماشا لگے، لیکن وہ خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ ملک بساط سے یاد آیا،
کہ تم تو عدت میں تھی. بدلے کی آگ نے تمہیں اتنا اندھا کر دیا جو تم صحیح اور غلط میں تمیز کرنا ہی بھول گئی ہو. اور تمہارے مطابق میں تمہارا قصوروار تھا، لیکن تم نے میرے بھائی کو کیوں چنا؟ زمار کا اب دھیما لہجہ غصے میں بدل رہا تھا. پہلی بات کہ میرے اور ملک بساط میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں کہ میں اس کے مرنے کے بعد عدت پوری کرتی. جب وہ میرے آیا ہی نہیں تو ایک شوہر ہونے کا حق ہی نہیں ادا کیا تو میں کس بات کی عدت کرتی جو بنتی بھی نہیں تھی. اور یہ بات صرف اب تمہیں پتا ہے. اور رہی بات شہریار کی، تو جس طرح تم نے انیزا کو چنا اسی طرح میں نے شہریار کو چنا. اور اب یہ جنگ شروع ہو چکی ہے مسٹر زمار. یا تو اس میں جیت کر دکھا دو، نہیں تو واپس پلٹ جاؤ. کیونکہ اگر میں تم جیسے شخص کو دھوکہ دینے کی ہمت کر سکتی ہوں تو سوچ لو کہ میری نفرت تمہیں برباد کرنے میں کتنا وقت لگا سکتی ہے. میرش نے اپنا چہرہ زمار کے قریب کرتے ہوئے کہا، اپنی بکواس بند کرو. تم اس گھر میں ہماری زندگی میں نہیں رہ سکتی، سمجھی؟ نکلو یہاں سے. زمار نے میرش کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے باہر لے کر جانا چاہا کہ میرش نے ایک جھٹکے سے زمار کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھڑا لیا تھا. تم ہوتے کون ہو مجھے گھر سے نکالنے والے؟ یہ جو حق جتا رہے ہو، مجھے حکم دے رہے ہو، تو تمہاری حیثیت میرے سامنے اب کچھ نہیں ہے. میں یہاں شہریار کی بیوی ہوں. اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ مجھے یہاں پر رکھے یا نکال دے. اور اب میں بیگ فیملی کی چھوٹی بہو ہوں. تم مجھے ایسے نہیں نکال سکتے. تم بھی جانتے ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا. میرش کی باتیں سن کر زمار کا خون کھول رہا تھا. اس سے پہلے زمار کو انتہائی قدم اٹھاتا انیزا وہاں آ گئی تھی. زمار. انیزا نے زمار اور مہرش کو ایک ساتھ دیکھتے ہوئے زمار کو آواز دی. میں آپ کو کمرے میں دیکھ رہی تھی اور آپ یہاں ہیں. ناشتہ لگ گیا ہے، آپ فریش ہو جائیں. انیزا نے زمار کے پاس آتے ہی اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جس پر زمار دانت پیس کر رہ گیا تھا. چلو. زمار نے نفرت بھری نظر مہرش پر ڈالی اور انیزا کے ساتھ کمرے کی طرف چلا گیا تھا. کمرے میں آتے ہی زمار انیزا سے بغیر کوئی بات کیے فریش ہونے چلا گیا تھا. انیزا ایک گہری سانس لیے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی. زندگی تھی کہ انیزا کے لیے ایک امتحان بن گئی تھی. وہ سب کچھ پا کر بھی بے چین ہو رہی تھی. وہ یہ بھی جانتی تھی کہ زمار اب مہرش سے محبت نہیں نفرت کرتا تھا، لیکن ایک عجیب سا ڈر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں چھپا ہوا تھا.